بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں برکت دے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے منور کر دے۔ آج جو ناول ہم مل کر ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے 13 شبوں کا ساتھی بائی سمرا بخاری۔ مکمل ناول ہے، ہیپی اینڈنگ ہے اور بہت ہی اچھا ناول ہے، تو چلیے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہو گیا ہے جی بیڑا غرق، اب نہیں یہ چلنے والی، شرفے نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر قطعیت سے کہا تھا۔ کیا مطلب نہیں چلے گی؟ تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ عصمت کی جلاہٹ لازمی تھی، شام سر پر اتر رہی تھی اور بیلے کے قریب آ کر گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بی بی جی، غلطی تو آپ کی بھی ہے، اور ذات ہو کر نکل کھڑی ہوئی شہر جانے کے لیے، جبکہ پتا بھی تھا ابا ڈرائیور بیمار ہے۔ میں تو جی گڈی چلا لیتا ہوں، ٹھیک کرنا مجھے نہیں آتی۔ شرفن بلا کا باتونی تھا، ایک بار بات شروع کر لیتا پھر ختم کرنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ عصمت پریشان ہو کر بیلے میں لگے درختوں پر اترتے اندھیروں کو دیکھ رہی تھی۔ دعا کرو بی بی جی، ڈاکو نہ آ جائیں، یہ بیلا تو گڑھ ہے ڈاکوؤں کا، اب ہم دونوں اکیلے بھلا کیا مقابلہ کریں گے ڈاکوؤں کا؟ ہتھیار ہوتا تب بھی کوئی بات تھی، ویسے اگر ہوتا تب بھی کیا فائدہ تھا؟ مجھے ڈنڈے کے علاوہ اور کچھ چلانا بھی کب آتا ہے؟ مگر ایک بات ہے، ہتھیار کا تو ذرا روب پڑ جاتا ہے۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ عصمت کو اس کی باتیں الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ ویسے بی بی کیا ضرورت تھی شہری سہیلی سے ملنے کے لیے اتنی دور شہر جانے کی؟ یہ شہری لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، آپ دیکھ لینا، یہ کبھی آپ سے ملنے گاؤں میں نہیں آئے گی، اور ہم لوگ اس کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں تو اپنی اماں سے کہہ کر آیا تھا مغرب کی اذان سے پہلے واپسی ہو جائے گی، اب تک وہ بیچاری انتظار کرتے کرتے پریشان ہو کر گاؤں سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہوگی۔ بڑا چھوٹا دل ہے میری بیچاری اماں کا۔ شرفے اب خاموش ہو جاؤ، مجھے کوئی حل سوچنے دو۔ بی بی ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے، شرفے نے پھر پکارا۔ عصمت نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ بی بی پیچھے دیکھو، سڑک پہ روشنی ہو رہی ہے۔ عصمت نے پیچھے دیکھا اور بولی، لگتا ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ ہاں جی گاڑی ہی ہوگی، بندہ تو سر پہ لائٹ لگا کر آنے سے رہا۔ بس دعا کریں سجن ہو دشمن نہ ہو۔ وقت مغرب سے تھوڑے بعد کا تھا، مگر سڑک کے دونوں جانب کھڑے گھنے درختوں نے اندھیرا کر رکھا تھا۔ انہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، آنے والی جیپ تھی۔ لگتے تو سجن ہی ہیں، شرفے کی جان میں جان آئی۔ تم انہیں رکنے کا اشارہ کرو۔ عصمت کے کہنے پہ وہ بھاگ کر سڑک کے درمیان جا کھڑا ہوا اور زور و شور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ ہاں کیا پرابلم ہے؟ جیپ رک گئی اور فل یونیفارم میں ملبوس ایک سمارٹ پولیس آفیسر نے جھانک کر شرفے سے پوچھا۔ جواب میں اس نے مایوسی سے سر ہلایا اور بولا، آپ تو پولیس والے ہو، ہماری بھلا کیا مدد کرو گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیرت کا اظہار کرتا آفیسر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ او جی آپ لوگ تو بادشاہ لوگ ہوتے ہو، آپ کا کام عوام کو چھتر مارنا ہے اور بس۔ جو بھی ہیلپ چاہیے جلدی بتا دو، اگر گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میرے ڈرائیور سے کہو، یہ بہت اچھا مکینک ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ عصمت پر پڑی تھی اور یہ خوبصورت سی لڑکی شام کے گہرے ہوتے سایوں میں کسی جادوئی کہانی کا خوابناک سا کردار معلوم ہوئی تھی۔ نگاہ کی گرمی محسوس کر کے عصمت نے تھوڑی خفگی سے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ وہ شرفے کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ مذاکرات میں مصروف کر کے اس کے پاس چلا آیا۔ کون ہیں آپ اور کہاں جا رہی ہیں؟ اس احمق محافظ کی ہمراہی میں، کیا آپ کو معلوم نہیں یہ کتنا خطرناک علاقہ ہے؟ پتا ہے، بس یوں ہی نکلنا پڑ گیا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی وارفتگی سے گھبرا رہی تھی اور دوسری طرف اس کا قد بت، مردانہ وجاہت دھڑکنوں میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کیے دیتی تھی۔ میرا نام شیرکو ہے، میں اس علاقے میں بطور ASP تعینات ہوا ہوں، چارج سنبھالے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کے وہ شرفے کی جانب مڑا اور بولا، یہ گاڑی کس کی ہے اور تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ تھانے دار جی، یہ گاڑی چودھری فیض بخش کی ہے، وہ اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار ہیں اور اللہ کے حکم سے نیک اور غریبوں کے بہت ہمدرد ہیں، ہم تو انہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتے۔ پچھلے سال پتا ہے کیا ہوا؟ میرا ابا اچانک… اچھا کون سا گاؤں ہے چودھری فیض بخش کا؟ اس نے شرفے کی لمبی بات سے اکتا کر پوچھا۔ یہی احمد آباد، اپنا گاؤں ہے، ادھر ہی ہمارے چودھری کی اتنی بڑی حویلی ہے، آپ دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔
गाड़ियां भी दो हैं उनके पास। भैंस तो बेहिसाब हैं। दूध, मक्खन आप जितना चाहें आपको मिलेगा। शेरको का ड्राइवर गाड़ी चेक कर रहा था और शुरफा शेरको के पास खड़ा मुसलसल कान खाए जा रहा था। तुम लगता है चौधरी साहब के खास आदमी हो, उसने कुछ कुछ तंजिया अंदाज में कहा। नहीं जी, मैं तो कच्चा पक्का मुलाजिम हूँ, अगर आप सिफारिश कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, मैं आऊंगा किसी रोज सिफारिश लेकर, तुम मेरा इंतजार करना। वो असमत को निगाह में रखकर शौकी से कह रहा था। शर्फे, पता तो करो आखिर कितनी देर लगेगी। बीबी घबराए नहीं, अल्लाह ने फजल कर दिया, अब थानेदार जी हमारे साथ हैं। सच मैं तो बड़ा बेफिक्र हूँ, और गाड़ी चेक करते करते आखिर कुछ वक्त तो लगता है ना। हाँ, तुम्हें बड़ा पता है, वो उस पे बिगड़ने लगी। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, वो तब कर बोली थी। इसमें शुक्रिया की तो कोई बात नहीं, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा, फिर ये शर्फे को छोड़ आए, इसकी अम्मा गांव के बाहर खड़ी इसका इंतजार कर रही होंगी। वो कुछ जलकर बोली थी। जवाब में शेर को दिलकशी से मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर क्या आप यहाँ अकेली रह जाने पे राजी हैं? वो बेबसी से सर झटक कर रह गई, फिर उसे हंसते देखकर बोली, आप वाकई पुलिस ऑफिसर हैं या सिर्फ यूनिफॉर्म पहन रखा है? अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखती हैं तो मैं अनकरीब सबूत भी पेश कर दूंगा। वो झिल्लाकर गाड़ी में आ बैठी, मगर जाने क्या बात थी, उसकी शख्सियत में दिल खींचता भी था। ऑफिसर की शौक निगाह ने उसके सारे वजूद में बरकी रोसी दौड़ा दी थी। 10 मिनट के बाद ड्राइवर ने शर्फे को बताया, गाड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हो गई ठीक। शर्फा अपनी सीट पर आकर बैठा तो उसने पूछा, हाँ जी, वो कहता है अब ये हवाई जहाज की तरह उड़ेगी। अपने मालिक की तरह बड़ बोला है। हाँ जी बिल्कुल, शर्फा जोर से हंसा। असमत को उसकी हंसी मायने खेत सी लगी और बात कह के पछतावे का एहसास हुआ। घर पहुंची तो रात के 8 बज रहे थे और फूफो कुबरा यकीनन उसके इंतजार में ही बैरूनी बरामदे में खड़ी थी। कहाँ रह गई थी तुम? कुछ पता भी है? कितना वक्त हो गया है, इलाका भी खतरनाक। मैंने कहा भी था फैज भाई से, पढ़ाई तक तो चलो ठीक है, मगर अब जबकि तुम अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी हो, फिर इन शहरी सहेलियों से मिलने की क्या तुक बनती है? मगर मेरी सुनता कौन है? ओ फूफी, आप पहले मेरी बात तो सुन लें, फिर अगर मुनासिब समझें तो डांट लीजिएगा। फूफो की हर वक्त की नुक्ताचीनी उसे बुरी तो लगती थी, मगर हंसकर सह जाना मजबूरी भी बन गई थी। हाँ, अब कर दो कोई बहाना। वो उसकी बात को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थी। असमत ने भी कुछ कहना फजूल जानकर अंदर बैरूनी हिस्से की जानिब कदम बढ़ा दिए। खाना तो उसने खाना नहीं था। लिबास तब्दील करके मुंह हाथ धोया और बिस्तर में आ गई। अक्टूबर का इख्तिताम था। हल्की हल्की खुनकी फिजा में दर आई थी और आते सरमा का पैगाम देती बहुत अच्छी लगती थी। आज का दिन खासा खुशगवार रहा, मगर ये वापसी पर जो गाड़ी खराब हो गई उसने मजा किरकिरा कर दिया। मगर वो जो कोई भी था, उसका दिल धड़का। कितने भरपूर, कैसे शानदार से होते हैं कुछ लोग। असमत ने करवट बदली, मगर सरापा ओझल नहीं हो सका। एक ही मुलाकात में कितना गहरा, कैसा दिलकश तासुर छोड़ जाते हैं। खुशबाश, बेफिक्र, पूरे एतमाद। मुझे यूं लगा जैसे उसे इस बात पर मुकम्मल यकीन है मैं उसे भुला नहीं पाऊंगी, और उसका यकीन सच्चा भी तो है। ऐसे लोग मुझे मुतासिर करते हैं। कॉलेज में हमारी इंग्लिश की टीचर ऐसी ही बाएतमाद और पुरबहार शख्सियत की मालिक थी। वो मुझे कितनी अच्छी लगा करती थी। मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। पहली मुलाकात में मुकाबिल पर गहरा तासुर छोड़ना चाहती हूँ। मगर मगर ओहो, ये सोच भी क्या अजीब चीज है, कहाँ से कहाँ निकल जाती है। हाँ, तो मैं उसको सोच रही थी। फुल यूनिफॉर्म में जच रहा था। कितना मान था उसे खुद पर, और क्यों ना होता। वो अपनी जात में क्या मुकम्मल दिखाई भी तो दे रहा था। कभी तो खुदा के फजल से कोई मुझ में भी नहीं, मगर मैं बाएतमाद नहीं हूँ। बीबी, रोटी नहीं खाओगी क्या? 15-16 साल अरहर सी रखी दरवाजे पर पड़ा भारी पर्दा उठाकर अपने मखसूस शौक से अंदाज में पूछते हुए आंखें घुमा घुमा कर कमरे का यूं जायजा ले रही थी जैसे आज पहली बार देख रही हो। बहुत कुछ खाकर जो आई होगी, मजा भी खूब आया होगा। ब्याह था ना आपकी सहेली का, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, खूब सुर्खी पाउडर लगाया होगा। तुमसे किसने कहा? असमत ने थकन के बावजूद सीधी होकर बैठकर पूछा। लो, पता कैसे नहीं चलता? आप जो इतने अच्छे कपड़े पहनकर गई थी, मैं समझ गई जरूर ब्याह पर ही जा रही हो। नहीं, वहां कोई ब्याह नहीं था, बस हम सब दोस्तों ने मिल बैठने को एक छोटी सी तकरीब की थी। फिर मजा आया? क्या क्या खाया? रखी झटाकर कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ओ रखी, अकल की कच्ची, तुझे बड़ी बीबी ने कहा था खाने के लिए बुला लाओ, और तू यहाँ आ बैठी। रखी की माँ का चेहरा दरवाजे पर नमूदार हुआ और उसे बैठे देखकर चिल्लाने लगी।
میں نے اسے بتا دیا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اچھا جی، مگر صاحب بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملک امیر علی صاحب بھی آئے ہیں۔ اوہو، یہ چچا امیر علی تو ٹلیں گے نہیں، اصرار کر کے بلا ہی لیں گے، انہیں بھی آج ہی آنا تھا۔ یہ سب سوچتے وہ تھکے تھکے سے انداز میں بستر سے اٹھی۔ بی بی، جی نہیں چاہ رہا تو میں کہہ دیتی ہوں سو رہی ہو، رکھی دھیرے سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، تمہیں تو پتا ہے وہ مہمان آئے ہیں، اگر سلام نہیں کروں گی تو بری بات ہوگی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر آئی۔ رکھی کی اطلاع کے مطابق وہ سب بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس نے جا کر باپ اور ان کے دوست امیر علی کو مشترکہ سلام کیا۔ آؤ جی آؤ، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا آج اس گھر میں وہ روشنی کیوں محسوس نہیں ہو رہی۔ اب تم آئی ہو تو سب روشن ہو گیا۔ اب تو یقین ہو گیا اس گھر کی روشنی تمہارے دم سے ہے۔ چچا امیر علی نے اسے اپنے برابر والے صوفے پر بٹھا لیا اور جس انداز میں پذیرائی کی تھی کہ ان کا مخصوص انداز تھا، وہ مسکرا دی اور بولی، چچا یہ تو آپ کی محبت ہے۔ فیض، یہ تمہاری سب سے بڑی دولت، تمہارے گھر کا اثاثہ ہے۔ اس میں بھلا کیا شک ہے ملک، یہ میرا فخر، میرا سرمایہ ہے۔ تم خوش نصیب ہو فیض بھائی، تمہیں اتنی باصلاحیت بیٹی اور ایسا باوفا دوست ملا ہے۔ اشارہ اپنی جانب تھا۔ تمہاری دوستی میرا اطمینان، میرا مان ہے امیر علی۔ اس بھری دنیا میں تم ہی میرا بازو ہو، مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ چودھری فیض جذباتی ہو گئے۔ ملک امیر ہنس پڑے اور بولے، اچھا سب کچھ کر سکتے ہو؟ ہاں، تم پر جن جان سب وار سکتا ہوں۔ چودھری فیض کا عزم پختہ تھا۔ اچھا پھر اپنی اس بات پر قائم بھی رہنا۔ بالکل، یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ ارے چودھری، تم تو جذباتی ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ویسے اب تم دونوں گواہ رہنا۔ وہ عصمت اور کبریٰ سے مخاطب تھے، دونوں نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ 50 سال کے قریب تو ہوں گے امیر علی، مگر خود کو بڑا سیٹ تھا۔ شخصیت تھی بھی خاصی جاندار، قد 6 فٹ سے کچھ اوپر ہی ہوگا، جسم بھاری بھرکم لیکن چست و چالاک، رنگ سرخی مائل گندمی، آنکھیں گہری براؤن جن میں ہلکی سی سبزی بھی جھلکتی تھی۔ عصمت جب انہیں دیکھتی سوچتی جوانی میں خاصے خوبصورت رہے ہوں گے۔ لباس پہننے کا سلیقہ بھی خوب تھا، بتاتے تھے سب سے اچھی ریڈی میڈ کمپنی کا سوٹ استعمال کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں چودھری فیض ملک امیر سے چند برس ہی بڑے ہوں گے، مگر 10 سال بڑے دکھائی دیتے تھے۔ گاؤں کے اکلوتے درزی سے سلوایا گیا سوتی لباس، آدھے کالے آدھے سفید بال، چہرے پہ تھکن اور گہری سنجیدگی۔ ہاں، اپنے دوست کی باتوں پر لطف لینا انہیں آتا تھا، ان کی سنگت میں خوش رہتے تھے۔ حیدر دکھائی نہیں دے رہا؟ امیر علی نے کبریٰ کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ کبریٰ نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور بولی، اپنے باپ کے پاس گیا ہے اور کہتا ہے اب 1 مہینہ ادھر رہ کر ہی لوٹوں گا۔ پتہ نہیں اتنے سال کبھی خبر نہ لینے والے باپ نے اب کیا گھول کر پلا دیا ہے۔ دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، 10 سال بعد حیدر یاد آیا ہے، کہتا ہے بیٹا ہے میرا، حق رکھتا ہوں میں اس پر، چاہوں تو لے جا بھی سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے گھر لے جانے کی بات نہیں کرتا؟ ملک نے پوچھا۔ بہت چالاک آدمی ہے، کہتا ہے اگر بھائی کے گھر بیٹھی اکتا گئی ہو، شوہر کا گھر چھوڑ کر، جو غلطی تم نے کی ہے اس کا احساس ہو گیا ہے تو واپس آ جاؤ۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسی بات سن کر چاہنے کے باوجود بھی کس طرح جا سکتی ہوں؟ آخر میری بھی کوئی عزت، کوئی آن ہے۔ میں نے سنا ہے اب اس کی اپنی دوسری بیوی سے نہیں بنتی۔ میں نے بھی سنا ہے اب وہ اس بنجر زمین سے تنگ ہے، مگر اونچی ناک رکھتا ہے، مجھے صاف صاف ساتھ چلنے کو نہیں کہتا، ساری بات مجھ پر ہی رکھتا ہے، اور میں حیدر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ایک ہی بچہ تو میری دولت، میری خوشی ہے۔ تم فکر نہ کرو بہن، اب میں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کروں گا، تم بڑی عزت و شان کے ساتھ اپنی حویلی میں واپس جاؤ گی۔ اگر ایسا ہو جائے بھائی تو میں ساری عمر دعائیں دوں گی۔ صرف دعائیں نہیں، انعام بھی چاہیے ہوگا۔ وہ مسکرائے اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بڑی شان سے بیٹھ گئے۔ جو کہو گے دوں گی۔ کبریٰ ابھی سے ممنون ہونے لگی تھیں۔ 10 سال پہلے معمولی بات پر جھگڑ کر میکے آئی تھیں، شوہر نے منانے کی کوشش کی، مگر تب وہ سوچے بیٹھی تھیں ناک کو چنے چبوا کر ہی واپس جاؤں گی، تاکہ دوبارہ مجھ سے جھگڑنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ وہ 2 بار منانے آیا، یہ روٹھی رہیں، اور تیسری بار اس کی آمد کا انتظار ہی رہا۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور یہ نصیبوں کو رونے کے لیے رہ گئیں۔ بے شک بھائی کے گھر پر حکمرانی اپنی ہی تھی، مگر ہر عورت کی آنکھ میں سوال اور طرس، آپس میں دبی دبی سرگوشیاں، اور سب سے بڑھ کر جوانی کی فطری خواہشیں۔ بیٹے کے اپنے باپ کے بارے میں معصوم سوال، وہ بات بات پر
गुस्से में आने और चीखने चिल्लाने लगी। और अब 10 साल बाद शोहर पलटा तो सिर्फ बेटे के लिए, या फिर उन्हें मनाना उसकी मर्दानगी पर चोट थी। असमत सोच रही थी अब इन लोगों से माजरत करके उठा जाए। नींद भी बहुत आ रही थी और थकन सवार थी। इलाके में नया पुलिस ऑफिसर आया है, चौधरी फैज ने कहा, और असमत इजाजत तलब करते करते रुक गई। हाँ, जवान खून है, ये उसकी दूसरी तीसरी पोस्टिंग की होगी। शेरा कोह नाम है, सुना है किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक है और काफी पढ़ा लिखा भी है। तुम मिल चुके हो उससे? हो जी, कान और आंखें खुली रखी जाएं तो मालूमात मिलना कौन सा मुश्किल काम है। तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो चौधरी, ये अपने बस की तो बात ही नहीं। बस अपनी अपनी सोच होती है। शराफत और इनकसारी को लोग बुजदिली का नाम देते हैं, मलिक ने याद दिलाया। बस दुनिया की हवा ही अजीब है, चौधरी ने मासूम सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मेरे अब्बा जैसे लोग तो धरती का हुस्न है चचा। तुमने भी हिमायत कर दी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। असल में असमत, तुम अभी किताबी दुनिया में रहती हो, जिंदगी इस किताबी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है मेरी शहजादी। फिर फैज बख्श की जानिब देखकर बोले, शेरा को अपने इलाके में तैनात हुआ है, उसे खाने की दावत तो देना होगी। पहले तुम्हारे यहाँ मदु करेंगे, तब मैं भी इधर मौजूद रहूंगा, और जब मैं उसे अपने गाँव बुलाऊंगा तब तुम मेरे साथ होगे। चौधरी ने मुकम्मल इत्तफाक करते हुए सर इस बात में हिला दिया। फिर वो असमत की जानिब रुक करके बोले, शहजादी, मेरी बात पर नाराज मत होना, तुम्हारी खफगी का बोझ हम नहीं उठा सकते। नहीं चचा, नाराज तो नहीं हूँ, मैं तो इजाजत लेने वाली थी, अब चलती हूँ, सख्त नींद आ रही है। इतनी जल्दी नींद आ रही है? जी, आज शहर गई थी, वापसी पर खासी देर हो गई। बात करते हुए वो उठकर खड़ी भी हो गई और जाते हुए उसने सुना वो कह रहे थे, असमत की पढ़ाई तो अब खत्म हो चुकी है ना? जी हाँ, मगर मेल मुलाकात खत्म होने में नहीं आ रहा, कुबरा ने कुछ जलकर कहा था। चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं। चौधरी ने बात बदल दी और उठकर वॉशरूम में हाथ धोने चले गए। तब अमीर अली ने कुबरा से कहा, जब तक इस घर में मैं हूँ, जब तक इस घर में हो, मामलात अपने हाथ में रखो। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही है, मगर असमत मनमानी कर रही है, उसे ये एहसास दिलाओ कि वो कदम कदम पर तुम्हारी बात मानने के पाबंद है। मैं क्या करूं, ये भाई साहब ही हर बात में बेटी का साथ देते हैं। तुम असमत के मामूलात पर कड़ी निगाह रखो और साथ साथ अपने घर वापसी की तैयारी भी करो। अच्छा, सच? कुबरा बेयकीन थी। बिल्कुल सच। अमीर अली जिस काम का बेड़ा उठा ले फिर उसे करके ही दम लेता है। तो मुझ पे पूरा भरोसा रखो, तैयारी करो, और अगर कहोगी तो सोकन से भी जान छुड़ा दूंगा। हाय अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा। अभी तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि अमीर अली क्या चीज है। फैज बख्श हाथ धोकर वापिस आए, मौजू तब्दील हो गया। 10 बजे के करीब अमीर अली घर जाने के लिए उठे, तब कुबरा ने कहा, भाभी भी आपकी आमद की मुंतजिर होंगी। अरे छोड़ो इस औरत की बात। हाँ, बस इसकी किस्मत के अमीर अली की बीवी बन बैठी, वरना तो वो मेरी हवेली में मुलाजमत के काबिल भी नहीं है। भाभी बहुत सादा शरीफ औरत हैं, कदर करो उसकी, चौधरी फैज ने टोका। चौधरी, कदर ही तो कर रहा हूँ जो अब तक मेरी हवेली पर राज कर रही है। यहाँ गांव की जिंदगी कई सालों से एक ही डगर डगर पर रवां दवां थी। हवेली की सुबह भी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। गरीब घराने की औरतें और बच्चे सवेरे ही लस्सी लेने आते और हवेली आवाजों से भर जाती। ये लस्सी कुबरा अपनी निगरानी में देती। कभी कभी असमत भी मुलाजमा के साथ आ खड़ी होती, तब वो उसे हदायत करती, मक्खन पहले निकाल लो, इन्हें सिर्फ लस्सी देना। मगर असमत ऐसे मामलात में लापरवाह थी, वो उनके बर्तनों में थोड़ा थोड़ा मक्खन भी डाल देती। साथ साथ इन औरतों से बातें भी किया जाती, हंसी मजाक भी चलता। ये गरीब औरतें तो इन अन्नदाताओं की एक नरम निगाह पर ही खिल उठती थीं। असमत अपने दोस्ताना अंदाज की वजह से उन्हें बहुत ही पसंद थी। तुम कभी भी अच्छी जिम्मेदारनी नहीं बन सकती, उसके अंदाज देखकर कुबरा कई बार कह चुकी थी। मुझे बस अच्छा इंसान बनने में दिलचस्पी है। पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। आज मेरी बातों को समझ नहीं रही, कल जरूर याद आएंगी। बाजी से ज्यादा रोब तो मेरा है। 12 साल हैदर अभी से छोटे बड़े के फर्क को समझता था। क्या फायदा ऐसे रोब का? मेरे अब्बा की बहुत सी जमीनें हैं और मैं इन जमीनों का इकलौता वारिस हूँ। वही अब्बा जिसने आज तक तुम्हें पूछा तक नहीं। उसकी बात सुनकर वो तन से कहती, इससे क्या फर्क पड़ता है, मालिक तो मेरा बेटा ही है। वो गर्दन तान कर कहती। असमत खामोशी में ही आफियत समझती। फैज सुबह नाश्ते के बाद ही डेरे पर चले गए थे और कहकर गए थे, आज कुछ झगड़े निपटाने हैं, देर हो जाएगी, तुम रोटी डेरे पर ही भेज देना।
मगर 11 बजे के करीब शुरफा इस पैगाम के साथ आया, चौधरी साहब रोटी घर पे खाएंगे, साथ में एक मेहमान भी होगा, खाना बहुत अच्छा सा होना चाहिए। कौन मेहमान? कुछ बताया नहीं। नहीं बड़ी बीबी, बस ये कहा था शहरी मेहमान होगा। अपनी बीबी भी शहरी खाने पकाना जानती हैं, कुछ ना कुछ वो पका ले। बाकी शादो भी अच्छा ही पकाती है, हाथ में जायका भी है, कुछ चीजें वो बना ले। और फिर वो देखे ना जी। शुरफा आदत के तहत शुरू हो चुका था। उन्होंने डांट कर खामोश करवा दिया। फिर रक्की से बोली, असमत को बुला कर लाओ ताकि इसकी जुबान से सारी बात खुद सुन ले। क्यों जी, आपकी बात नहीं मानती हैं वो? बकवास मत करो, ऐसा ना हो मैं तुम्हारी ये 24 घंटे चलने वाली जुबान काट कर चील कौवों को खिला दूं। लो जी, कमाल है बड़ी बीबी, गुस्सा क्यों करती हो? एक जुबान ही तो है मेरे पास, अगर वो भी ना चलाऊं तो मर ही ना जाऊं। और छुरियां चाकू पिस्तौल से जुबान चलाना ही बेहतर है। जा दफा हो जा, उन्होंने बिगड़ कर कहा और उसकी जानिब से रुख फेर लिया। शुरफा गया नहीं, असमत के इंतजार में खड़ा रहा। वो आ गई तो कुबरा बोली, अभी अभी डेरे से पैगाम आया है, शहर से कोई अहम मेहमान आ रहा है। शादों के साथ तुम भी बावर्ची खाने में जाकर कोई अच्छी सी डिश बना लो। वो उस बात में सर हिलाकर कुछ कहने वाली थी कि शुरफा बोल उठा, ओ जी, याद आया, आप तो इस मेहमान को जानती हैं। इस रोज जब हम शहर से आ रहे थे, गाड़ी खराब हुई थी तो एक थानेदार साहब मिले थे, बस वही आ रहे हैं। शर्फे अपनी अम्मा से कहना आज शाम को मेरे पास आए, मुझे उससे अपने दुपट्टे पे शीशे लगवाने हैं। असमत ने पुप्पी के सामने इस जिक्र को तवील नहीं होने दिया और फिर उनकी जानिब देखे बगैर अंदर आ गई। अच्छा, तो आप तशरीफ ला रहे हैं? बेइख्तियार ही लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। काम तो जो भी उसे सौंपा जाता दिल जमाई से करने की आदी थी, मगर आज जो लगन थी उसने असमत का हाथ बटाती मासूम रखी को भी चौंका दिया। क्या बात है बीबी, आज तो आप बहुत खुश हो। अच्छा, मैं बहुत खुश दिखाई दे रही हूँ। तो और क्या जी, बहुत ही खुश। कोई खास मेहमान आ रहा है क्या? नहीं तो, बस बाबा से कोई मिलने वाले हैं। वो उसका नाम नहीं बता सकी। हाँ जी, क्या हो रहा है? वाह भाई वाह, आज तो शहजादी खाना बना रही है और ये खाना तो हमारे लिए एजाज की बात होगी। अमीर अली उसके बाप के बेतकल्लुफ दोस्त तो थे और वो उन्हें चचा कहती थी। इस घर में उनसे कोई पर्दा नहीं करता था, मगर आज से पहले वो घर की बैठक, खाने के कमरे या फिर फैज बख्श के कमरे तक ही आए थे। आज यूं बावर्ची खाने में आ जाने पर असमत को थोड़ी हैरत हो रही थी, मगर इजहार नहीं किया। अरे चचा, आप अंदर चलकर बैठिए, यहाँ तो बहुत गर्मी है। जब शहजादी यहाँ खड़े होकर काम कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं भला कहाँ की शहजादी हूँ, आप यूं ही बनाते रहते हैं। और रखी की जानिब देखकर झींपी सी हंसी के साथ बोली थी, क्यों रखी, क्या ये शहजादी नहीं लगती? शहजादी से भी बढ़कर है हमारी बीबी। रखी वाकई उससे बहुत मोहब्बत करती थी। हाँ, अब क्या बोलोगी? कुछ नहीं, वो फिर हंस पड़ी। देखिए तो सही क्या पकाया जा रहा है। वो आगे बढ़े और उसके बराबर आ खड़े हुए, स्लेब पर रखी पतीलियों के ढक्कन उठा उठाकर चेक करने में मगन थे। उसके इतने करीब थे कि उनका बाजू असमत के बदन से छू रहा था, मगर शायद उन्हें इसका एहसास नहीं था। आहा, कैसी प्यारी खुशबू आ रही है। ऐसे ही बनाया मत करें चचा। मैं यूं ही तो कुछ नहीं कहा करता शहजादी, जैसे मुझे खुशबू अच्छी लग रही है ऐसे ही खाना भी पसंद आएगा। दरअसल जो लोग दिल को अच्छे लगते हैं उनकी हर बात ही अच्छी लगती है। ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। कभी मेरी फूफो से भी राय ले लें मेरे बारे में। अपनी फूफी की बात का बुरा मत माना करो, वो अब इस घर में चंद रोज की मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। वो अब खासी परेशान रहने लगी हैं, बात बे बात उन्हें गुस्सा आ जाता है, मुलाजमों को बहुत डांटती हैं। हाँ, मैं सब समझता हूँ, मुझे पूरा एहसास है। इसकी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी। वो तो मालिक ही बन बैठी है तुम्हारे अब्बा की हवेली में। नहीं चाचा, मैंने तो यूं कभी नहीं सोचा। आखिर वो मेरे अब्बा की बहन है, मेरी बुजुर्ग हैं। ये तुम्हारी बड़ाई है, मैं गलत नहीं कहता। तुम बहुत सिफ्तों वाली लड़की हो। आप अंदर चलकर बैठें, अगर चाय पीना चाह रहे हैं तो मैं भिजवा देती हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ, बस ये सुनकर इधर चला आया कि आज शहजादी खाना पका रही है। बाबा जान के मेहमान आ गए हैं? नहीं, अभी तो नहीं आए, आने ही वाले होंगे। तुम बस अपने हाथ से एक कप चाय बनाकर भिजवा दो। उसने सर इस बात में हिला दिया। उनके जाने के बाद रखी से बोली, ये बर्तन तुम बाद में साफ कर लेना, पहले एक कप चाय बनाकर दे आओ। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूंगी, फिर खाना खाऊंगी।
ये चाचा भी कुछ अजीब हैं। पुप्पी के सामने इनकी कितनी तारीफ करते हैं और आज इनका जिक्र किस तरह कर रहे थे। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। चाचा जैसे लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, मगर मेरे अब्बा की बात ही अलग है। मेरे अब्बा जैसे लोग दिलों पर हुकूमत करते हैं, साफ खरे लहजे वाले और बेदाग किरदार के मालिक। मुझे उनकी बेटी होने पर फख्र है। जबकि मलिक चाचा के बारे में मैंने ऐसी बातें सुन रखी हैं जिन्हें जानकर मुझे अफसोस हुआ है। पता नहीं कितनी सदाकत है, मगर कोई तो बात है तो ही तो बतंगड़ बनता है। मैं आ जाऊं बाजी? रखी दरवाजे का पर्दा हटाकर इजाजत तलब कर रही थी। इजाजत मिलते ही अंदर आ गई और बोली, पता है बीबी, इधर बैठक में एक मेहमान आया है। इतना सज्जन, ऐसा सोहना है कि क्या बताऊं। असमत का दिल मामूल से हटकर धड़का। तो इधर तू उधर क्या करने गई थी? मैं मलिक साहब को चाय देने गई थी। चौधरी साहब ने कहा मेहमान के लिए भी चाय लाओ। उसने कहा शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीऊंगा। चौधरी साहब बड़े खुश हैं, अब उसे घर के अंदर वाली बैठक में ला रहे हैं। अच्छा, मगर अंदर वाली बैठक में तो सिर्फ अजीज रिश्तेदार ही आते हैं, या फिर मलिक चाचा? अब मैं क्या जानूं जी, मर्जी चौधरी साहब की। वो इतना कहकर चली गई। लगता है अब्बा भी मेहमान से मुतासिर हो गए हैं, वरना रिहायशी हिस्से की बैठक में क्यों लाते। बीबी, आपको चौधरी साहब बैठक में बुला रहे हैं। शादो ने आकर पैगाम दिया। बैठक में? और कौन कौन है वहां? सभी बैठे हैं, मेहमान आया है। उसने उठकर दुपट्टा सलीके से ओढ़ा और चली आई। वो सामने ही बैठा था। अस्मा झिझक कर रुक गई। आज तक अब्बा ने कभी किसी गैर मर्द के सामने नहीं बुलाया था। कहीं शादो को बात समझने में गलती तो नहीं हुई। आओ बेटा, रुक क्यों गई? चौधरी साहब की आवाज पर वो संभल कर आगे बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम जी। पता नहीं असमत को महसूस हुआ या वाकई सलाम करते हुए उसके अंदाज और निगाह में शौकी ही शौकी थी। वो सिर्फ सर के इशारे से जवाब दे पाई। यहाँ इधर मेरे पास आ जाओ। मलिक अमीर अली ने अपने बराबर वाले सोफे की जानिब इशारा किया, मगर तब तक वो भूपी के साथ कुर्सी पर बैठ चुकी थी। ये मेरी बेटी है, इसने शहर में तालीम हासिल की है। अब वह हमेशा की तरह फख्र से बता रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह। असमत ने सुना जरूर, सर नहीं उठा सकी। ये तुम्हारी वालदा मरहुमा की तायाजाद बहन फातिमा का बेटा शेर को है। ओह अच्छा। उसे फातिमा खाला अच्छी तरह याद थी। बहुत पुरानी बात थी जब उसकी वालदा हयात थी और उनकी तायाजाद बहन, जो कि बहुत अच्छी दोस्त भी थी, शहर से मिलने गांव आया करती थी। वो उनके बच्चों से वाकिफ नहीं थी, खाला अकेली ही आती थी। कैसी हैं खाला? उसने शेर को से पूछा। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, ये बता रहा है। इसके वालिद की भी वफात हो चुकी है। शेर को और उसकी छोटी बहन इधर हमारे ही इलाके में है। अगर पहले पता होता तो हम अपनी बेटी को भी जरूर बुलाते। चौधरी साहब कह रहे थे। असमत ने भी इस बात में सर हिलाया और बोली, मुझे आपके वालदैन की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आपके वालिद से तो ज्यादा मिलना नहीं रहा, मगर खाला बहुत ही प्यार करने वाली हस्ती थी। हमारे इलाके को कब रौनक बख्श रहे हैं जनाब? अमीर अली उससे पूछ रहे थे। अभी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं, टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। वो ये नहीं कह सका। यहाँ तक तो इस लड़की की कशिश खींच लाई है, वरना वो अपने इलाके में बासर शख्सियात के घर जाना पसंद नहीं करता कि एक बार खाना खा लो। ये लोग उसे एहसान जानकर अपने काम निकलवाने की कोशिश में लग जाते हैं। टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? मालिक इसरार कर रहे थे। वो खामोश रहा। फैज बख्श हमारे भाई, हमारी जिगरी दोस्त हैं। अगर तुम्हारी उनसे रिश्तेदारी बनती है तो हमें भी अपना रिश्तेदार मान लो। वो आपसे तुम पर बहुत आराम से आ गए थे। क्यों नहीं जी? शेरकोह के अंदाज में हनूज तकल्लुफ था। अमीर अली उसे बताने लगे। उनकी मलकियत में कितने गांव हैं, वो कितने बागात के मालिक हैं, उनके इलाके में आबादी कितनी है, वो किस तरह हुकूमत करते हैं, और ये भी कि उनकी पहुंच दूर दूर तक है। वो शहर आते जाते रहते हैं और शहर के बारसूख लोगों से शनासाई रखते हैं। उनके अंदाज में बड़ाई थी। वो शेरकोह को मुतासिर करने की कोशिश में थे। उसने ये सब सुनकर किसी किस्म का तबसरा नहीं किया। जब मेरे घर आओगे तो तफसील से बात होगी। आप हमारे घर जरूर आइएगा। मेरी बहन आलिया आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। एक हादसे में वो दोनों टांगों से माजूर हो चुकी है, चल फिर नहीं सकती। आप आएंगी तो वो भी बहल जाएगी। मेरी जॉब तो ऐसी है कि चाहने के बावजूद उस बेचारी के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। ओह, सुनकर सभी को अफसोस हुआ और असमत ने फौरन कहा, वो उनके यहाँ जरूर आएगी। तुम शादी कर लो बेटा, उस बच्ची की तन्हाई भी दूर हो जाएगी। फैज बख्श ने मशवरा दिया।
जी पहले तो इस बारे में नहीं सोचा था, अब चंद दिन से सोचने लगा हूँ। असमत ने सर झुका लिया। वो उसकी बात का मतलब बखूबी समझ गई थी। सोचने से तो बात नहीं बनती, अमल भी कर डालो। वो भी मुस्कुराई। जी जरूर, बस आपकी मदद दरकार होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जी जान से हर खिदमत को तैयार हैं। वो तीनों जोरों शोर से कह रहे थे। असमत ने पलकें उठाई। वो उसी की जानिब देख रहा था और मुस्कुराहट उसके चेहरे को जगमगा रही थी। मेरा ख्याल है अब खाना खा लिया जाए। वो ये मौजू बदलना चाहती थी। इतनी जल्दी क्या है? मैं खाने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ। उसने मिलने पे जोर दिया। अब वो क्या कहती? आज खाना मेरी बेटी ने बनाया है। चौधरी साहब बड़ी शफकत से उसे देखते हुए शेरको को बता रहे थे। कहीं पहली मर्तबा तो नहीं बनाया? मेरा मतलब है तजुर्बाती खाना तो नहीं है? अमीर अली ने कह कहा लगाया और बोले, ये पहली मर्तबा पकाती तब भी बहुत अच्छा पकाती। वैसे बेफिक्र रहो, पहली ट्राई नहीं है। असमत, मेरा ख्याल है तुम खाना लगवा दो, फिर हमें डेरे पर भी जाना है। नहीं चचा, मैं आपके और अपने ताल्लुक को अब रिश्तेदारी तक ही रखना चाहता हूँ। इस वक्त मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ना आप खुद को इलाके का सरबराह समझें। फैज बख्श ने इत्तफाक करते हुए सर इस बात में हिला दिया। ओ ना जी बादशाहो, आप शायद गांव वालों की नफ्सियात नहीं समझते। रौब तो रखना पड़ता है, वरना ये लोग काबू कहाँ आते हैं। अमीर अली ने इख्तलाफ किया था। फिर वो उसे समझाने लगे। ये देहात के अनपढ़ लोग इंसानी कम हैवानी नफ्सियात ज्यादा रखते हैं और इन्हें सुधारने के लिए डंडे की जरूरत पेश आती रहती है। वो खामोशी से सुनता रहा, जिससे उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि कायल हो चुका है और उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। जिस वक्त असमत खाना लगवा रही थी, वो तीनों एक साथ ही खाने के कमरे में दाखिल हुए थे। फिर शेर को उसे मौजूद पाकर तेजी से आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अब आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द मेरे घर पर होनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया और असमत के हाथ पैरों में ऐसी सनसनाहट शुरू हुई कि बर्तन सेट करने मुश्किल हो गए। उसके रुखसत होते ही अमीर अली भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। तुम तो अभी बैठो अमीर अली, कौन सा ज्यादा वक्त हो गया है? क्या करूं चौधरी, बखेड़े पड़े हैं और एक नई मुसीबत। मेरी अम्मा बीमार हो गई है। बुढ़ी ज़ईफ हो गई है, बीमारी में भी और मुसीबत डाल देती है। बस यही चाहती है मैं हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहूं। फिर इन दोनों खवातीन को देखकर बोले, हवेली में बहुत सा इजाफा किया है मैंने, यूं समझो नई ही बनवा ली है। किसी दिन तुम दोनों आओ ना मेरी तरफ। क्यों नहीं मलिक भाई, हम जरूर आएंगे। फूफा जल्दी से बोली थी। और तुमने जवाब नहीं दिया। उनकी इस बात पर वो कुछ हैरान हुई और बोली, मेरी राय फूफी जी की राय से अलग थोड़ी होगी। उन्होंने कह दिया आएंगे तो फिर आएंगे। आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, बार बार तुम्हारे हाथ का बना खाने को ही दिल चाहेगा। उसने सोचा, जायका तो एक खास वजह से था, भला रोज रोज ऐसा थोड़ी बना पाऊंगी। क्या बात है, किस सोच में हो? कुछ नहीं, थक गई हूँ, अब सोऊंगी। हाँ, सारा दिन काम करती रही हो, अब आराम करो। इतनी नाजुक सी तो हो, बीमार ना पड़ जाना। वो अपने कमरे में चली आई। बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी, आज का दिन अच्छा गुजरा। मगर ये मलिक चाचा बोलते बहुत हैं। ये भी जानने की जरूरत महसूस नहीं करते कि सुनने वाला उनकी बातों को पसंद भी कर रहा है या मारे बांधे ही बैठा है। अब अगली मुलाकात बहुत जल्द मेरे घर पे होनी चाहिए, किसी ने सरगोशी की थी और वो सिमट सी गई। कैसी अजीब बात है, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि तुम हमारे अजीज भी होते हो। यूं हमारी मुलाकात की राह निकल आई, वरना तुम यहाँ आकर भी मुझसे ना मिल पाते। फूफी कुबरा का प्रोग्राम जल्द ही मलिक के घर जाने का था, मगर हैदर बीमार पड़ गया। फूफी ने तो साफ कह दिया, बाप के घर आने जाने लगा है। जरूर सौतेली माँ ने तावीज करवा दिया है। वो है ही डायन, पहले मेरे शोहर का काबू किया, अब तुझे बीमार कर डाला। जन्म जली पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे लग गई है। मैं अभी बदला लूंगी, मलिक भाई से बात करती हूँ, जल्दी इंतजाम करें इस डायन का। फैज बख्श को हैदर की बीमारी का पता चला तो गाड़ी निकलवाकर फौरन शहरी डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार हो गए। असमत ने सुना तो साथ जाने की इजाजत चाही। तालीमी सिलसिला तो खत्म हो चुका था, मगर किताबों से दोस्ती तो खत्म नहीं हो सकती थी। वो कुछ किताबें ही खरीदना चाह रही थी। हैदर की बीमारी कोई ऐसी सीरियस नहीं थी। डॉक्टर ने कहा मौसमी बुखार है और चंद दवाएं लिख दी। जिस वक्त वो बुक शॉप पे खड़ी थी, हैदर भी उसके साथ खड़ा पूरी दिलचस्पी से किताबें देख रहा था। जल्दी करो असमत, मुझे एक काम से भी जाना है। बाप के कहने पर उसने जल्दी जल्दी 3 किताबें मुंतखब की और गाड़ी में आ बैठी। मुझे काम से मिलने एएसपी शेरकोह के ऑफिस जाना था, मगर अब वो घर जा चुका होगा, खासा वक्त हो चुका है।
میرا خیال ہے گھر ہی چلتے ہیں، تم اس کی بہن سے بھی مل لینا۔ جی بابا، وہ دھڑکتے دل کے شور سے خائف ہو کر دھیرے سے بولی تھی۔ اس کا گھر ویسا ہی تھا جیسے کہ سرکاری مکان ہوا کرتے ہیں، لال اینٹوں کی عمارت، سب دروازے اور سادگی بھی ایک روب رکھتی تھی۔ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار سے پتا چلا صاحب گھر پہ موجود ہیں۔ فیض بخش نے اپنا نام بتا کر ملاقات کی اجازت چاہی تو وہ خود گیٹ پر چلا آیا۔ ارے آپ لوگ! اسے شاید عصمت کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ چودھری فیض بخش کی آمد کی اطلاع سن کر ہی چلا آیا تھا۔ مجھے اطلاع دے کر آتے، خیر ابھی بھی لیٹ تو نہیں ہوئے، اگر تھوڑی دیر مزید ہو جاتی تو میں نکلنے ہی والا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس خوشی کا اظہار اس کی باتوں اور ہر انداز سے ہو رہا تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم تک اپنی رہنمائی میں لے کر گیا، پھر عصمت سے بولا، آؤ تم میرے ساتھ آؤ، عالیہ سے ملواتا ہوں۔ ہاں چلیے، وہ فوراً ساتھ ہو لی۔ میں نے اتنا ذکر کیا ہے عالیہ سے تمہارا، وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ میری کتنی خواہش تھی کہ تم میرے گھر آؤ۔ اب سوچ رہا ہوں اس دعا میں چند لفظوں کا مزید اضافہ کر لینا چاہیے تھا۔ وہ کتنی بے تکلفی سے یہ سب کہتا اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ اب اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ چلتے چلتے رک گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں تم سے بہت باتیں کرتا ہوں، بس اسی رو میں سب کہہ گیا۔ چلو آ جاؤ، اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، پکا وعدہ ہے میرا۔ وہ پھر ساتھ چلنے لگی۔ عالیہ 19-20 سال کی بہت پیاری سی لڑکی تھی۔ اسے ویل چیئر پر دیکھ کر عصمت کو واقعی بہت افسوس ہوا۔ ارے آپ! وہ عصمت کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ آئیے بیٹھیے نا، میں آپ سے ملنے کو بہت بے چین تھی، مگر میرے لیے کہیں آنا جانا خاصا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ مگر کیوں؟ ہماری ملاقات تو بہت سرسری سی رہی ہے۔ مجھے عملی تجربہ تو نہیں، مگر پڑھا ضرور ہے۔ محبت پہلی نظر میں اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ ذہن اور دل پر قبضہ جما لیتی ہے، اور میرے بھائی نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ یقین کریں وہ دل پھینک نہیں ہے، ایک ذمہ دار آفیسر اور اس سے بڑھ کر بہت مہربان اور اچھے انسان ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ان کی محبت کی قدر کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ دولت تو کسی کسی خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ ایک روایت پرست گھرانے کی ایسی لڑکی ہوں جسے اپنی روایات پہ فخر بھی ہے۔ آپ صرف اعتبار کریں، باقی کام میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ چائے کے لیے کہہ کر بہت جلدی واپس آ گیا تھا۔ عالیہ کے پاس آ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولا، نکمی لڑکی، تم نے میری وکالت تو اچھی طرح کی ہے نا؟ پھر عصمت سے بولا، ہاں جی، آپ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ سمٹ سی گئی۔ تو کیا آپ کے ابا سے جا کر پوچھوں؟ وہ ہنس پڑا، پھر بولا، چائے آ رہی ہے اور میں نے ملازم سے کہہ دیا ہے جو چائے ڈرائنگ روم میں رکھی جائے اس کے ساتھ شوگر پاٹ نہ رکھیں، تاکہ میں یہ لینے کے بہانے دوبارہ ادھر کا چکر لگا سکوں۔ عصمت کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ عالیہ، تم اتنے چالاک بھائی کی تعریف کر رہی تھی۔ چالاک نہیں، اس کے لیے ذہین، عقل مند، ذی شعور وغیرہ وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیر کو بہن کی پشت پہ کھڑا تھا اور عصمت اس کی پرشوق نگاہوں کے حصار میں سامنے بیٹھی تھی۔ میرے ابا منتظر ہوں گے؟ نہیں، آپ کے ابا سے میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ ابھی چائے کے ساتھ حاضر ہوں گا، چائے اپنی نگرانی میں تیار کروانے کے بعد، اسی لیے وہ میری غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں گے۔ اگر میں پھر کہوں آپ چالاک ہیں تو مانیں گے نہیں؟ جی ہاں، اسی لیے آپ میرے لیے یہ لفظ استعمال نہ ہی کریں۔ شیر کو سے ہونے والی یہ ملاقات اتنی بھرپور تھی کہ ان کے ہاتھ سے واپسی کے بعد بھی وہ جیسے ذہنی طور پہ وہیں تھی۔ کتنا زندہ دل تھا وہ، اسے سننا، اسے دیکھنا، دونوں ہی خوشگوار تجربے تھے۔ وہ کتنا سچا اور دلیر لگتا ہے، اور خوش نصیبی کہ میری ننیھال سے ہے۔ میرے ابا اسے غیر برادری کا کہہ کر انکار نہیں کر سکتے۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، سبھی محسوس کر سکتے تھے۔ پھوپھی نے یہ سوال کیا، رکھی نے پوچھا، یہاں تک کہ امیر علی بھی پوچھ بیٹھے۔ اگر میں خوش رہنے لگی ہوں تو کیا یہ بری بات ہے؟ وہ خواہ ناراضگی کا اظہار کر گئی۔ تمہیں خوش دیکھ کر تو ہمارا ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے شہزادی۔ تو بس ڈھیروں خون بڑھائیے کہ میں خوش ہوں۔ اسے یہ دخل اندازی کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ میں تو اس خوشی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ابھی تو مجھے خود بھی وجہ معلوم نہیں۔ وہ ہنسی اور پھر ملک امیر علی کی آنکھوں میں کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے خاموش ہو گئی، رکی نہیں، اپنے کمرے میں چلی آئی۔
شیر کو سے اگلی ملاقات امیر علی کے گھر پہ ہوئی۔ امیر علی کی والدہ کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئی تھیں۔ رات 10 بجے اطلاع آئی۔ کبرا پھوپھی اور چودھری صاحب اس وقت روانہ ہو گئے تھے جبکہ وہ سوئم پر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ 3-4 سال ہوئے ان کے گھر آئی تھی، تب ان کی بیوی اور والدہ سے ملاقات ہوئی تھی، جبکہ اکلوتی بیٹی رضوانہ ان دنوں اپنی ننیال گئی ہوئی تھی۔ آج ان کا گھر پہلے سے خاصا کشادہ اور جدید دکھائی دے رہا تھا اور اس گھر میں مرگ ہوئی تھی، مگر ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ شاید بوڑھی ماں امیر علی کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ امیر علی کی دونوں شادی شدہ بہنیں یہاں موجود اور حکم چلانے میں پیش تھیں، جبکہ ان کی سادہ سی بیگم ایک کونے میں خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی تھیں۔ سانولا رنگ، سر کے کھچڑی بال، ہاں نقش بے حد جاندار تھے، اگر وہ خود پہ توجہ دیتی تو بہت اچھی لگ سکتی تھیں۔ ملک امیر علی کی بیٹی رضوانہ ان کی آمد کی اطلاع سن کر آئی اور اس کا انداز عصمت کو بڑا عجیب سا لگا۔ مقابل کو سر سے پیر تک بغور دیکھنا اور چہرے پہ ایسا تاثر رکھنا جیسے مقابل نے اسے قطعی متاثر نہیں کیا۔ شاید اس کی عادت رہی ہوگی، وہ کنواری تھی مگر سونے کے اچھے خاصے زیورات پہن رکھے تھے، جبکہ یہ اس علاقے کے رواج کے خلاف بات تھی۔ اس کے کپڑے شوخ رنگ کے اور ان پہ شیشے کا بے تحاشا کام تھا۔ بالوں میں لمبا پراندہ تھا، وہ خاصی مغرور سی لگتی تھی۔ آپ عصمت ہیں؟ اپنے ابا سے کافی ذکر سنتی رہتی ہوں آپ کا۔ ابا نے کہا تھا آپ لوگوں کا خاص خیال رکھوں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ملک چلے آئے اور بیٹی سے بولے، رضو تم نے عصمت کو اپنا گھر دکھایا ہے؟ دکھا دوں گی، ابھی تو یہ آئی ہیں۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ سی تھی۔ تم ایسا کرو، عصمت کے لیے اور بہن کبرا کے لیے چائے بنا کر الگ کسی کمرے میں رکھو، یہاں بھیڑ بھاڑ میں مت لے آنا، میں تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ اب وہ اسے مخاطب تھے، اسے اٹھنا پڑا، جبکہ وہ تو صرف افسوس کے لیے آئی تھی۔ امیر علی نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر کا ایک ایک کمرہ دکھایا۔ واقعی بہت اچھا ہے، تمہیں پسند آیا؟ مجھے تسلی ہو گئی۔ اور جو نہ آتا پھر چاچا؟ تو پھر میرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں تو وہی کچھ بنانا چاہتا ہوں جو تمہیں پسند آئے، تمہاری مرضی کے عین مطابق ہو شہزادی۔ ان کا انداز آج پھر اسے چونکا گیا، سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت امیر علی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں تنہا تھی۔ وہ انتہائی قریب کھڑے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ پلٹی اور یہ کہتی ہوئی باہر کو چل دی، پھوپھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابھی رکو شہزادی، تمہیں کیا پتا کہ ہم نے… چاچا دیر ہو گئی ہے، رضوانہ چائے بنا کر انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ رکی نہیں۔ حال کمرے تک جانے والے راستے پر اسے حیدر مل گیا اور بولا، کہاں تھیں تم آپا؟ میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں، وہ پولیس آفیسر جن کے گھر ہم گئے تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی بہن نے آپ کے لیے کوئی پیغام دیا ہے، لون میں کھڑے ہیں، جا کر ان کی بات سن لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ کچھ سوچ کر اس نے اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ حیدر لان میں جا کر بہار دیتے پھولوں کی جانب متوجہ ہو گیا اور شیر کو کے پاس چلی آئی۔ یہ بتاؤ کیسی ہو؟ یاد کیا تھا یا بھول گئیں؟ اپنے دل سے پوچھ لیں۔ دل سے کیا پوچھیں، دل ہمارا بڑا خوش فہم ہے۔ نہیں، وہ خوش فہم نہیں ہے، سچ کہتا ہے۔ اچھا واقعی؟ شیر کو نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ آپ کی آمد بہت اچھی لگی، اس وقت آپ کی بہت ضرورت تھی۔ وجہ؟ وہ جامن کے پیڑ سے ٹیک لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں وجہ تو ہے، مگر اس وقت بتانے کا موقع نہیں، بس میں پریشان تھی۔ یعنی اب نہیں ہو؟ اب واقعی نہیں ہوں۔ خوش رہا کرو، وہ سمجھا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، زندگی اتنی فضول چیز تو نہیں ہے، اسے ادھر ادھر کے دکھوں سے دکھی کر لیا جائے۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے جائیں بھاڑ میں، جو ہمارے لیے اہم ہیں ہی نہیں، ہم ان کی کسی بات کو اہمیت ہی کیوں دیں؟ شاباش، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ ویسے وہ کون سی غیر اہم ہستی ہیں جن کی باتوں پر آپ پریشان ہونے کی حماقت کر رہی تھیں؟ ملک امیر علی، اس نے بیزاری سے یہ نام لیا۔ وہ تو تمہارے والد کے بہت اچھے دوست اور اس کے حوالے سے چچا ہیں تمہارے۔ پہلے میں ایسا ہی سمجھتی تھی، مگر ضروری نہیں دوسرے بھی اس تقدس کو اہمیت دیں۔ یہ شخص مجھے پہلی ملاقات میں ہی اچھا نہیں لگا تھا، اس کی آنکھیں اس کے کہے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی، وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ آج اس نے بہت اصرار کر کے مجھے ادھر بلوایا ہے، مقصد صرف لوگوں کو یہ دکھانا کہ میں اس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتا ہوں۔ آج سے پہلے بھی کئی بار ان کی باتوں نے مجھے چونکایا، مگر جب بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھا وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، مگر آج تو سب بہت واضح تھا۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہ رہی ہوں۔
ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس تسلی پر اس نے آسودگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ عالیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بیچاری اپنی محدود دنیا میں خوش رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر سے چل پھر سکتی ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے۔ مجھے جہاں بھی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے، بہن کو لے کر ضرور جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، شاید خدا کو رحم آ جائے، خدا تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ شہزادی، تم تو ادھر کھڑی ہو جبکہ ادھر رضوانہ چائے بنا کر منتظر ہے۔ او، تو آپ بھی ادھر موجود ہیں؟ شیر کو پہ نظر پڑی تو عجیب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ابھری۔ جی بالکل، نہ صرف میں بلکہ یہ حیدر بھی یہی ہے، آپ کو شاید یاد نہیں، ہم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ او ہاں ہاں، میں جانتا ہوں۔ امیر علی نے خود کو سنبھالا، پھر عصمت سے بولے، چلو شہزادی، کبرا بہن منتظر ہیں تمہاری۔ حیدر، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ ملک کے ساتھ 2 قدم بھی تنہا چلنے کو تیار نہ تھی۔ چلو، تمہیں کوئی تو ننھیالی عزیز تو ملا، ان کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، خاموشی سے چلتی رہی۔ یہ شہری چھوکرے وقت گزاری کے لیے کہیں نہ کہیں چکر چلائے ہی رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ وہ رک گئی اور بہت تلخی سے سوال کیا۔ ملک اس کے سامنے یوں آ کھڑے ہوئے کہ ان کے لمبے چوڑے وجود میں عصمت کی ذات چھپنے لگی۔ میں تمہیں بہت معصوم، دنیا کی کثافت سے پاک لڑکی سمجھتا ہوں شہزادی۔ وہ سر جھٹک کر چل پڑی۔ چائے پر پھوپھی کے ساتھ 4-5 مزید خواتین بھی موجود تھیں اور پھوپھی زور و شور سے ان سے باتیں کیے جا رہی تھیں، جبکہ وہ بیزار سی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ابا بڑی تعریف کرتے تھے آپ کی، مجھے بڑا حسد ہوتا تھا، سوچتی آخر پتہ تو چلے ایسی کیا بات ہے اس لڑکی میں، اور آج دیکھ ہی لیا۔ انداز کہتا تھا ابا سے اتفاق نہیں ہے اسے۔ رضوانہ جیسی بدلحاظ لڑکی بری تو بہت لگی مگر خاموشی رہی۔ کیا بات ہے، ہم اور ہمارا گھر اچھا نہیں لگا؟ رضوانہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے اسی مخصوص کٹیلے انداز میں پوچھنے لگی۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، اس نے بھی لحاظ اور مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو کوئی مجبور کر کے لایا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے، ویسے ہم اتنے برے تو نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنے بارے میں اچھی ہی رائے رکھتا ہے۔ امیر علی ادھر آئے تب رضوانہ نے بڑے تن سے ان سے کہا، ابا یہ تو یہاں 1 منٹ رکنے کو تیار نہیں ہے، شاید یہ جگہ اپنے قابل نہیں لگی۔ لو، اتنا شاندار تو بنگلہ ہے ہمارا۔ تم بھی تو کچھ بولو۔ نگاہ پھر سے اس پہ ٹک گئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا چچا، اس نے چچا پر خاصا زور دے کر کہا۔ پھوپھی کبرا اتنے سالوں سے میکے بیٹھی ہوئی تھیں، اب پتہ نہیں امیر علی نے کیا چکر چلایا، ان کے شوہر اور جیٹھ خود انہیں لینے چودھری فیض بخش کے ہاں آ گئے۔ امیر علی نے ایک روز پہلے کبرا سے کہا تھا، تم اپنی تیاری مکمل رکھو، کل اکبر تمہیں منانے آ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے بھائی جی، ابھی ہماری پہنچ کا اندازہ جو نہیں ہے، دیکھ لینا، کل وہ آئیں گے اور شرمندگی کا اظہار بھی کریں گے۔ بھائی سب گواہ رہنا، میں نے برسوں پرانا تنازع نپٹایا ہے۔ وہ بطور خاص عصمت کی طرف دیکھ کر بولے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے کہے گا تو یقین کرنا ہی پڑے گا بھائی جی۔ تم تیاری رکھو اور یہ بھی یاد رکھو، میں نے منہ مانگا انعام لینے کو کہا تھا۔ پھوپھی نے اپنے کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں اسی وقت سمیٹنی شروع کر دی تھیں، اپٹن سے منہ دھویا، نہائی اور سر میں چنبیلی کا تیل بھی ڈال لیا۔ جس وقت اکبر اور ان کے بھائی چودھری کے ہاں آئے، امیر علی پہلے سے موجود تھے۔ آج چودھری فیض کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ خاصی کمزوری محسوس کر رہے تھے، مگر بہرحال اتنے خاص مہمانوں کے پاس تو بیٹھنا ہی تھا۔ یہ اور بات کہ سارا وقت امیر علی ہی ان سے باتوں میں مصروف رہے۔ ان لوگوں نے دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھایا، پھر شام سے پہلے کبرا اور حیدر اپنے سامان کے علاوہ 1 بوری چاول، 20 کلو گڑ، 5 سیر خالص گھی اور 5 کلو کھوئے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ کتنی رونق تھی ان دونوں کے دم سے، اب میری حویلی ویران دکھائی دیتی ہے۔ چودھری اداس تھے مگر ساتھ ساتھ ملک کے بے حد شکر گزار بھی تھے۔ یہ تمہارا ہی کام ہے جو اکبر یوں منانے چلا آیا، ورنہ میری بہن انتظار کرتے کرتے اب مایوس ہو چکی تھی۔ تم نے میری بڑی الجھن حل کر دی ہے۔ عصمت ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے نہیں معلوم امیر علی کی واپسی کب ہوئی۔
आने वाले दिनों में तन्हाई का एहसास तो रहा, मगर आजादी की खुशी भी थी। अब पुप्पी की निगाहों में उसके लिए बेजारी और नापसंदीदगी साथ साथ नहीं थी। वो सारा वक्त मुलाजमाओं के साथ लगी रहती। एक हफ्ता यूं गुजरा कि उसे पता भी नहीं चला। घर को अपनी पसंद से सजाते संवारते वो मगन सी रहती थी। हाँ, चौधरी साहब ने शायद ज्यादा ही महसूस किया जो बीमार पड़ गए, और उस दिन जो डेरे से लौटे तो असमत उन्हें देखकर फिक्रमंदी हो गई। आप शहर जाकर डॉक्टर को दिखाएं अब्बा। शहर के डॉक्टर की दवाई भी मुझे अमीर अली ने ला कर दी है, और ये एक माजून भी दिया है। मैं दोनों चीजें बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर फायदा नहीं हो रहा। तो अपने इलाके के हकीम साहब से ही मशवरा कर लें। हमारे इलाके का हकीम तो बस गुजारा ही है। ये माजून भी अमीर अली शहर के एक मशहूर हकीम से लाया है। 3 दिन तक चौधरी साहब वही माजून इस्तेमाल करते रहे, और तीसरे दिन शाम को निकाहत का ये आलम था कि बिस्तर से उठने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने अपने ड्राइवर को डेरे पर भेजकर मलिक अमीर अली को फोन करवाया और खुद आने को कहा। उसने वापिस आकर बताया, मलिक साहब मौजूद नहीं है, आपका पैगाम और खराब तबीयत होने का बता दिया है। अब्बा, अब ठीक होकर घर में फोन लगवा लें, जरूरत पड़ ही जाती है। असमत बुरी तरह घबरा रही थी और ऐसे में शेरको को यहाँ मौजूद देखना चाहती थी। तुम ड्राइवर को फौरन कुबरा के यहाँ भेजो, उसे बुला लो। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। उन पर शदीद घबराहट तारी थी और बोलने में दिक्कत का सामना था। असमत फौरन बाहर को लपकी। ड्राइवर को फौरन कुबरा फूफो के यहाँ रवाना किया। उनकी आमद से पहले अमीर अली चले आए। क्या हुआ चौधरी? हट्टे कट्टे होकर बिस्तर संभाल लिया है। आते ही उनके बिस्तर पर बैठ गए और खुशमिजाजी से कहने लगे। फिर असमत से बोले, तुम जाकर एक गिलास दूध ले आओ। वो सर इस बात में हिलाकर कमरे से बाहर आ गई, और जब दूध का गिलास लेकर वापस लौटी तो उसका बाप दुनिया से रुखसत हो चुका था। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब्बा, अब्बा, उठे, ये दूध पी लें। वो बेयकीन थी, भाभीओ अचानक चला जाएगा। वहमो गुमान में भी नहीं था। अमीर अली ने दूध का गिलास उसके हाथ से ले लिया और बोले, खुद को संभालो। अब तुम ही इस हवेली, इस जायदाद की मालिक और रखवाली करने वाली हो। खुदा के लिए डॉक्टर को बुलाओ, उन्हें दिखाओ तो सही, शायद अभी कुछ सांसें बाकी हों। नहीं, इन्हें कोई डॉक्टर वापस नहीं ला सकता। तुम्हें हौसला करना है, होशमंदी का सबूत देना है। जब तक कुबरा पहुंची, हवेली सोगवारों से भर चुकी थी। असमत को हवास बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। अमीर अली ने कुबरा को दवा देकर कहा था, ये असमत को दे दो, वो संभल नहीं पा रही, ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा है। असमत के लाख इनकार के बावजूद कुबरा और अमीर अली ने ये दवा उसे खिला दी, और फिर उसे कुछ होश न रहा। जब वो होश में आई थी तब वहां कुछ भी बाकी ना था। वो बाप को रुखसत होते भी ना देख सकी थी। उस बात का शदीद कलक था। अपने गुस्से का इजहार कुबरा और अमीर अली के सामने भी कर डाला। तुम पागल हो रही थी, अगर कुछ हो जाता हम कहाँ संभालते तुम्हें? कुबरा ने नाराजगी से उसकी बात रद्द की थी। आप लोगों को यूं नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हारे बड़े हैं, हमने जो कुछ किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। उन्हें तो जाना ही था। अगर तुम होश में होती तो क्या रोक लेती? इतनी जल्दी क्यों की गई उन्हें आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में? शहजादी, ये तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं फिर यही कहूंगा, तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो, आराम करो, तुम बहुत कमजोर हो रही हो। बाकी हवेली और जायदाद की बिल्कुल फिक्र ना करो। आखिर मैं किस लिए हूँ, सब देख लूंगा। बीबी, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? रखी चली आई और बड़े प्यार और अपनाइए से उसका हाथ थाम कर पूछने लगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा कुछ खा लो, दूध ही पी लो। उसने प्यार से हाथ में लिया, हाथ थपक कर कहा, इसमें जब खाना होगा हम खुद मंगवा लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। अमीर अली ने रखी को बुरी तरह डांट कर बाहर निकाल दिया। असमत को अच्छा नहीं लगा, मगर फिलहाल उसकी दिमागी हालत ऐसी थी कि वह ज्यादा देर किसी एक बात को सोच ही नहीं सकती थी। जहन गोते खा रहा था। वो कमरे में अमीर अली की मौजूदगी का एहसास किए बगैर लेट गई और बायां बाजू आंखों पर रख लिया। सोना चाहती हो? चलो ये तो अच्छी बात है। दोनों दोनों बाहर निकल गए और वो बेआवाज रोने लगी। अमीर अली ने अपने गांव पैगाम भेजकर अपने कुछ खास मुलाजिम यहाँ बुला लिए थे। कुबरा ने वजह पूछी और कहा था, मुलाजमों की हमारी हवेली में कमी तो नहीं है। जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम नहीं सोच सकती। इस वक्त ये जो बरादरी के इतने लोग जमा हैं, ये चौधरी भाई की मोहब्बत में नहीं आए। इन्हें जायदाद का लालच यहाँ खींच लाया है। चौधरी साहब का ना तो कोई बेटा ना भाई। इस तरह बहुत से दावेदार दावा करेंगे। कानूनी तौर पर हिस्सा भी बनेगा। कुबरा कुछ सोचते हुए परेशान कुन लहजे में बोली,
गोली मारो कानून को। मेरे होते हुए तुम्हें किसी फिक्र की जरूरत नहीं, किसी को एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। कुबरा ने एहसानमंदी से सर हिला दिया। मैंने अपनी मुलाजमा शादो से कहा है वो असमत को दूध का गिलास दे आए। तुम साथ जाना, अपनी मौजूदगी में उसे पिलाना, वरना शायद वो पीने से इनकार ही कर दे। वो इतना कहकर मर्दाना हिस्से की तरफ चल पड़े। बरादरी की औरतों ने उन्हें बगौर देखा और इशारों में एक दूसरे को उसके बारे में बताने लगी। ये खानदान में से नहीं है, जात बरादरी भी अलग, मगर इस वक्त तो यूं लग रहा है जैसे सब कुछ इसी के हाथ में है। वो इसकी मौजूदगी को पसंद नहीं कर रही थी। हाँ, सुना है बड़ी पहुंच वाला है, शहर में बड़ा आना जाना है, अफसरों से सलाम दुआ करता है और नाच गाना देखने भी जाता है। इसी इलाके के जमींदार की बीवी ने राजदारी से बताया। अच्छा, इसकी बीवी नजर नहीं आई, ना ही बच्चों के बारे में पता चला है। वो अपनी बीवी को अहमियत ही कब देता है, बेचारी सीधी सादी हमारी तरह, हमारी तुम्हारी जैसी औरत है। ये इसे सर नहीं उठाने देता, बाहर की औरतों में ऐश करता है। और बच्चे? किसी और ने पूछा। दो बच्चे हैं, एक लड़की जवान है, अपनी असमत से एक 2 बरस छोटी होगी, और एक लड़का साइस लोग है, बेचारा बड़ा इलाज करवाया है मलिक ने, मगर लगता है कुदरत भी उसे बेटे की सूरत में उसके गुनाहों की सजा दे रही है। दूसरी शादी नहीं की इसने बेटे के लिए, आखिर इतनी जमीनें जायदादें हैं। ऐसे मर्दों का क्या एतबार, शायद कर रखी हो, लेकिन बज़ाहिर तो एक ही बीवी है और इसकी वजह इसके 4 साले हैं। ज्यादा जमीनों वाले तो नहीं, मगर बदमाशी करते हैं, जाहिल हैं पक्के, अगर किसी बात पर गुस्से में आ जाएं, फिर अपना अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं। शायद इन्हीं के डर से मलिक बीवी को घर में बिठाए हुए है। रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे थे, मगर वो जो ये समझते थे जायदाद में हिस्सा बनता है, वो डेरे लगाए इत्मीनान से बैठे थे और आपस में सलाह मशवरा करते रहते थे। 10वें रोज कुबरा ने असमत से इस सिलसिले में बात की थी और कहा था, मैं भाई अमीर अली से कहूंगी इस मामले को जल्दी निपटा दें। भला ये लोग होते कौन हैं, हिस्सा तलब करने वाले? वो भी उनका हक कानून भी तस्लीम करता है। मेरा ख्याल है जो कुछ कानूनी और शरई तौर पर हमारा हक बनता है वो हमारे लिए काफी है। एक तो तुम पता नहीं किस दुनिया में रहती हो। अरे, ये तुम्हें गायब करवाकर सारी जायदाद हड़प कर जाएंगे। खैर, अब ऐसा भी अंधेर नहीं, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। हाँ बीबी, ये पढ़ाई ही तो सारे फसाद की जड़ है। कितना कहा भाई से, बस करो, अब बीबी रानी को ब्याहने की सोचो, मगर हमारी किसने सुनी थी। भुगतो अब। असमत के लिए फूफी का ये रवैया, ये अंदाज किसी सदमे से कम नहीं था। वो तो समझी थी फूफी ढारस बंधाएंगी, हौसला देंगी, मगर उनके हर हर अंदाज में उसके लिए पहले से भी ज्यादा बेजारी थी। तुम्हारे फूफा कह रहे हैं मैं जल्दी अपने हिस्से को अलग कर लूं, कानूनी तौर पर सारे काम करके इस मामले से अलग हो जाऊं। आपकी मर्जी है। उसके अंदर तन्हाई कुआं खोदने लगी थी। तुम अमीर भाई को अपने साथ साथ रखो। नहीं, मैं इसकी जरूरत नहीं समझती। इस बार वो भी अटल लहजे में बोली थी। तुम्हारे समझने ना समझने से क्या होता है, होगा वही जो हम चाहेंगे। वो सर झटक कर कमरे से चली गई। मुझे हर सूरत शेर को से मिलना चाहिए और इस सिलसिले में मशवरे के साथ साथ कानूनी मदद भी मांगनी चाहिए। ये फैसला करते ही उसने रखी को बुलवा कर कहा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे एक जरूरी काम से अभी रवाना होना है। रखी के जाने के बाद उसने उठकर लिबास तब्दील किया और अलमारी से चादर निकालने लगी थी कि एक बार फिर अमीर अली बगैर दस्तक दिए उसके कमरे में चले आए। मैंने सुना है शहजादी कहीं जाने की तैयारी में हो। वो उसके बहुत करीब पुष्ट पर आ खड़े हुए। मैं असमत हूँ, मुझे शहजादी मत कहा करें। वो मुस्कुराए और उसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोले, कहाँ की तैयारी है? दिल घबरा रहा है, बाहर निकलना चाहती हूँ। वो शेर कौफ के यहाँ जाने का उन्हें बता नहीं सकती थी। चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। शहर यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर तो है। शहर चलते हैं, तुम्हें ढेरों शॉपिंग कराऊंगा, सारी बोरियत दूर हो जाएगी। मैं तन्हाई चाहती हूँ, आप फिलहाल इधर रहें, घर का ख्याल रखें। उसने मसलहत से काम लेते हुए कहा था। मगर तुम अकेले तो जा ही नहीं सकती, इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मगर मैंने आपसे इजाजत ली ही कब है? मैं अपने घर में हूँ, खुद मुख्तार हूँ। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मेरा मतलब है तुम दुश्मनों में घिरी हुई हो। ये नाम नेहाद रिश्तेदार मौके की तलाश में हैं, तुम्हें अगवा भी कर सकते हैं और कत्ल भी। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर मैं। बस, उन्होंने हाथ उठाकर उसे कुछ कहने से रोक दिया। मैंने कह दिया तुम बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारी सलामती अजीज है। अगर मेरे साथ जाना है तो चलो। वो सख्ती से बोले थे। कुछ देर उसके जवाब का इंतजार किया, फिर उसे खामोश देकर बाहर निकल गए। ओ मेरे खुदा, ये कैसा अजाब है मेरे लिए। वो सर हाथों में थाम कर बैठ गई।
रिश्तेदार ये सोचकर आए थे अपना हिस्सा वसूल करके ही जाएंगे, मगर अमीर अली जिस तरह यहाँ छाया हुआ था, वो सब खामोश रहने पर मजबूर थे कि उनमें से कोई भी उससे टकराने की ताकत नहीं रखता था। उसने कुछ दिन बड़ी खामोशी से उन सबका जायजा लिया, फिर बोरिया बिस्तर गोल करने को कह दिया। हम फैज मरहूम के रिश्तेदार हैं। चंद एक ने एहतजाज किया। अच्छा, उनकी जिंदगी में तो तुम लोगों को कभी नहीं देखा। अंदाज में भरपूर तंज था। कुछ भी हो, हम अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे, दबे दबे अंदाज में कहा गया था। अच्छा, फिर देखते हैं तुम अपने हिस्से का ये जरा सा टुकड़ा ले पाते हो या इसके पीछे अपनी जमीनें भी गंवा बैठते हो। अबरू चढ़ाकर तो मुस्कुराना हंसी हंसकर बेनियाजी से कहा था। इन लोगों ने यही सोचा, अभी हक जताने के हालात साजगार नहीं हैं, वापिस जाना ही अक्लमंदी है, कुछ दिनों बाद दोबारा चक्कर लगा लेंगे। इन बरादरी वालों से कुछ ऐसे भी थे जिनके लड़के जवान थे। वो सोच रहे थे अगर असमत उनके बेटे से ब्याह दी जाए तो एक बड़ी जायदाद हाथ आ सकती है। इन घरों की औरतें असमत को शीशे में उतारने के लिए उसके करीब होना चाहती थीं, मगर मलिक की खास मुलाजमा आड़े आती थी। वो किसी को उसके कमरे में जाने नहीं देती थी, और ये औरतें ये भी देख रही थीं। असमत की हालत अजीब सी थी। वो खोई खोई और सुस्त दिखाई देती थी। बहुत कम कमरे से निकलती, उसके बारे में यही पता चलता बीबी सो रही हैं। दिन के किसी एक हिस्से में उसे दूध का गिलास जरूर दिया जाता था। उसका खाना और दूध आमतौर पर रखी ही लेकर आती थी, जबकि बावर्ची खाना मुकम्मल तौर पर मलिक की एक मुलाजमा के स्पुर्द था, जो जुबान की कड़वी और देखने में किसी पहलवान से कम नहीं थी। दूध का गिलास वही रखी को देती थी और ताकीद करती थी, जब तक बीबी ये गिलास खत्म ना कर ले तुम कमरे से वापस ना आना। रखी, तुम मेरा एक पैगाम शेरपोह तक पहुंचा दो। आज जब रखी दूध लेकर आई, असमत काफी हद तक अपने हवास में थी। ये कौन है बीबी? वही पुलिस ऑफिसर जो एक बार हमारे यहाँ आया था। वही जो बहुत सोना था, रखी ने याद किया। बिल्कुल वही, बस तुम मेरा खत किसी तरह उसे पहुंचा दो। बीबी, तुम तो जानती हो हम हवेली के एक ही हिस्से में बनाए गए घर में रहते हैं और मलिक के मुलाजिम। अब हम सब मुलाजिमों पर खास नजर रखते हैं। हम आपके किसी रिश्तेदार से ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगी कि अपनी बीबी का ये काम कर दूं। ठीक है, मैं रात को खत लिख दूंगी। तुम सुबह जब नाश्ता देने आओगी तब ले लेना। मगर दूध पीने के बाद वो कुछ ऐसी मदहोश हुई कि फिर अगली सुबह ही की खबर लाई। रखी नाश्ता लेकर आई, साथ ही ये इतला भी थी, बरादरी वाले अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मुझसे किसी ने मिलने की जरूरत भी नहीं समझी। मलिक साहब ने मना कर दिया, सबसे कह दिया आप बीमार हैं। बहुत बुरा किया उस चालाक मलिक अमीर ने। आज वह शदीद नफरत में घिरकर उसका नाम ले बैठी। लाओ बीबी, वो खत तो दे दो। कौन सा? असमत का जहन काफी हद तक मफलूज हो चुका था। शेरकोह के नाम जो लिखा था वही। रखी ने सरगोशी की। ओ, मैं तो भूल ही गई, बस नींद ही ऐसी आई, कुछ होश ही ना रहा। आज लिख दूंगी। बीबी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मलिक की एक मुलाजमा उसके कमरे के बाहर निगरानी के लिए बैठने लगी थी। वो अंदर आई और बड़े खुश्क अंदाज में कहने लगी, तुम आइंदा मेरे कमरे में आने की जुर्रत मत करना। उसे ये अंदाज तबा गया था। आराम से बात करो बीबी, हम अपने मलिक के सिवा किसी की डांट नहीं सुनते। वो कमर पर हाथ टिकाकर बड़ी बेनियाजी और बेखौफी से गोया हुई थी। तो जाओ अपने मलिक के घर। यहाँ क्या लेने आई हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। जब हमारे मलिक साहब हमें वापसी का हुक्म देंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। और रखी, तू क्या हर वक्त यहाँ घुसी रहती है? तुझे और कोई काम नहीं है? ये मेरी मुलाजमा है, तुम इस पर हुक्म चलाने वाली कौन होती हो? असमत ने गुस्से में नाश्ते की ट्रे उलट दी। मैं अभी मलिक साहब को बताती हूँ। वो धमकी के अंदाज में कहती हुई बाहर निकल गई। उफ, पता नहीं यह अजाब कब तक मुसल्लत रहेगा हम पर। मैं आज ही शेरकोह के नाम खत लिखती हूँ, तुम फौरन उस तक पहुंचा दो। शहजादी, तुमने नाश्ते की ट्रे क्यों उलट दी? मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। और सुनो, मेरे मुलाजमों के साथ तमीज से बात किया करो। खुदा के लिए तुम सब निकल जाओ मेरे घर से, वो चीख कर बोली। फिर उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। इस वक्त जो मुस्कुराहट मलिक के चेहरे पर उभरी थी वो मायने खेज थी। सर से पांव तलक बगौर उस मजबूर लड़की को देखा, फिर खामोशी से बाहर निकल गए। बीबी, एक बात मैंने सुनी है, पता नहीं ठीक है या गलत, मगर मेरे दिल में बैठ गई है। जो कहना है जल्दी कह डालो, कहीं वो चुड़ैल फिर ना आ जाए। बीबी, जब हमारे चौधरी साहब फौत हुए, गांव के लोग इत्तला मिलते ही दौड़े चले आए थे। फिर बरादरी के लोग भी इकट्ठे हो गए। सब यही कहते थे जनाजा मगरिब के साथ उठाया जाए, मगर मलिक ने बहुत जल्दी डाल दी और कब्रिस्तान ले गए। लोग कहते हैं चौधरी साहब का जिस्म नीला पड़ने लगा था, यूं लगता था उन्हें जहर दिया गया है। लोग चुपके चुपके ऐसी बातें कर रहे थे। रखी, ये तुम क्या कह रही हो?
मेरे अब्बा को जहर देकर मारा गया है। आसमत के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। मैं कितनी बेबस हूँ, किस कदर अकेली हूँ रखी। तुमने ये बात मुझे बताकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। तुम मेरे लिए भी दुआ करो। जिंदगी मेहरबान नहीं रही, मगर फिर भी मुझे जिंदगी से प्यार है। मैं जीना चाहती हूँ। उसने इस वक्त मुख्तसर सा खत शेरगो के नाम लिखकर रखी को दे दिया, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। वो खत पकड़ा गया। रखी को अंदाजा नहीं था, उसकी निगरानी होती है। जब वो चोरी छुपे हवेली से निकली थी, तभी उसे पकड़कर मलिक के हजूर पेश कर दिया गया था। कहाँ जा रही थी तुम? अपने मामे के घर। ये उसने झूठ नहीं कहा था। ये खत उसे मामू के जरिए ही शेरकोह तक पहुंचाना था। लाओ, मैं खुद पहुंचा दूंगा। मलिक ने खत उससे ले लिया। वो समझ गई, अब ये खत कभी भी शेरकोह को नहीं मिलेगा। अब तुम बीबी के पास नहीं जाओगी। अपने घर से निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। अमीर अली ने खत पढ़ा। सिर्फ 2 लाइनों का खत था। बाप की वफात की खबर और मिलने की इल्तिजा। अगर ये खत रखी अपने मामू को पहुंचा भी देती, तब भी तुम्हारे आशिक को नहीं मिल सकता था। वो तो अपनी बहन के साथ कराची गया हुआ है। बदनसीब शहजादी। ये सब सोचते हुए मलिक ने खत के पुर्जे कर डाले। जो मुलाजमा दूध का गिलास लेकर आई थी, उसका चेहरा असमत के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। कौन हो तुम? और रखी कहाँ है? मेरे को क्या मालूम, मैं तो नौकर हूँ, हुक्म की गुलाम। जल्दी पी लो तो मैं गिलास लेकर जाऊं। ये दूध पीना क्या बहुत जरूरी है? जब मैं मंगवाया करूं तब लाया करो। नहीं, मलिक साहब का हुक्म है, तुम्हें दूध जरूर दिया जाए। असमत का माथा ठनका। दूध का गिलास थाम कर कुछ सोचा, फिर बोली, बावर्ची खाने में शहद रखा है, वो भी ले आओ, दूध में डालकर पीऊंगी। मुलाजमा इस बात में सर हिलाकर वापस चली गई। असमत उसके जाने के बाद जल्दी से उठी और दूध वॉशरूम में जाकर बहा दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये उस पर भी वाजे नहीं था। बस एक ख्याल, एक खौफ उसके जहन पर जम गया था। मुलाजमा शहद का जार लेकर आई तो उसने दरवाजे पर ही वसूल करके लॉक लगा दिया। शायद मुझे भी जहर दिया जा रहा है, या फिर ऐसी दवा जिससे मेरा जिस्म और जहन सोया रहता है। यकीनन ऐसा कुछ है। अमीर अली नहीं चाहता मैं बेदार हूँ और उसके कारनामों को महसूस करके उन पर एहतजाज कर सकूं। दूध नहीं पिया और वो खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। सोचने समझने की सलाहियत बेदार हो रही थी। रखी नहीं आई। शायद खत पकड़ा गया है। वो उसके लिए परेशान थी और उसके बारे में जानना चाहती थी। उसने शाम तक बड़ी बेचैनी से इंतजार किया था और रात को उससे मिलने का इरादा बांध लिया था। 11 बजे के करीब वो दबे कदमों अपने कमरे से निकली थी। हर सू खामोशी का राज था। बरामदा किसी चहल पहल से खाली था। वो अपने ही घर में चोरों की तरह दबे पांव चलती बाहर आई थी और उस हिस्से की जानिब बढ़ने लगी जहां मुलाजमों के छोटे छोटे मकान थे। रखी के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा रखी की माँ ने खोला। बीबी, तुम इस वक्त यहाँ? मैं रखी का पूछने आई हूँ। वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो इस वक्त? रखी ठीक है, घर पर ही है। मलिक ने हमारे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। आप जाओ बीबी, अगर मलिक को पता चल गया तो ये आपके वास्ते भी अच्छा नहीं होगा। मेरा खत तो पहुंचा दिया था ना उसने। ना बीबी, यही तो अफसोस है हमें। रखी पकड़ी गई। आपका खत मलिक के आदमी ने ले लिया था। इसकी सजा दी है रखी को। बाहर निकलने पे पहरे लगा दिए हैं। चलो बीबी, बातें बहुत हो गई। पीछे से किसी ने भारी आवाज में कहा और असमत की चीख निकलते रह गई। बस अब चलो, हमें गाफिल मत समझो। बको मत। ये मेरा घर, मेरा गांव है। तुम कौन हो? मेरे घर में बगैर इजाजत क्यों घुसे हो? वो अब संभल चुकी थी और उस पर चिल्ला रही थी। हम मलिक साहब के मुलाजिम हैं। उन्होंने हमें आपकी हिफाजत के लिए यहाँ भेजा है। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। हम सिर्फ अपने मलिक साहब के हुक्म के पाबंद हैं। तुम अपने कमरे में चलो, वरना हम जबरदस्ती पे मजबूर होंगे। वो अपने कमरे में वापस आ गई, मगर सो नहीं सकी। आज उसका जहन पूरी तरह बेदार था। वो अपने मसाइल का हल सोचना चाहती थी। मुझे पूरा यकीन हो चुका है, ये मलिक ही मेरे अब्बा का कातिल है और मुझे भी रास्ते से हटाना चाहता है। अब मैं ये दूध हरगिज नहीं पीऊंगी। मुझे जिंदा रहना है, अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है। रात के 2 बज रहे थे। उस पर बेचैनी तारी थी। आखिर वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी आसमान पे चमकते तारों को देखने लगी। क्या इनमें कोई मेरी किस्मत का सितारा भी है, या वो टूट चुका है? कुछ देर ऐसी ही सोचों में उलझने के बाद वो उठी और चौधरी फैज के कमरे में आ गई। सैफ खोला तो दिल धक से रह गया। बिल्कुल खाली था। कागजात, चेकबुक, नकद सब गायब था। एक एक करके तमाम अलमारियां देख डाली, वहां कुछ भी ना था। सुबह का उजाला फैलने लगा था। वो कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाने की बजाय बरामदे में ही बैठ गई। फिर जब मुलाजमों की चहल पहल शुरू हुई तो वो उठकर बावर्ची खाने में चली आई। बीबी, तुम इधर कहाँ? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मलिक की खास मुलाजमा उसके रास्ते में आ खड़ी हुई।
عصمت نے आओ देखा न ताओ जोर का हाथ उसके चेहरे पर जड़ दिया, फिर धक्का देकर रास्ते से हटाते हुए बोली, किसकी बात करती हो? ये मलिक आखिर होता कौन है? जाओ दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। उसने भड़कर छुरी उठा ली। मुलाजमा डर कर भाग गई। छुरी फेंक कर वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गई। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे अकेला ना छोड़। उस रोज उसने मलिक के किसी मुलाजिम को किचन में नहीं आने दिया, अपने लिए खाना खुद तैयार किया और फिर दरवाजे पे ताला डाल के अपने कमरे में आ गई। शाम को मलिक चले आए। क्या हुआ शहजादी? सुना है आज बड़े जलाल में हो। मलिक के चेहरे पे खौफनाक संजीदगी तारी थी। तुम सब मेरे घर से निकल जाओ। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं उनके सामने खुद साख्ता बहादुरी कायम ना रख सकी। तुम इतना तो जानती हो, इस जायदाद की तनहा वारिस नहीं हो, और भी बहुत से हिस्सेदार हैं इसके, और उनमें एक बड़ी हिस्सेदार तुम्हारी अपनी फूफी कुबरा भी हैं। ये घर तुम्हारी फूफी के हिस्से में चला गया था और उससे मैंने खरीद लिया है। क्या? वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। हाँ, अब तुम बार बार इस घर पर अपनी मलकियत जताना, मेरे मुलाजमीन से बदतमीजी करना छोड़ दो। वैसे भी अब कुछ दिनों तक तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे इसकी नए सिरे से तामीर करवानी है। मगर मैं कहाँ जा सकती हूँ? वो बुरी तरह परेशान हुई थी। मेरा घर हाजिर है। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी तो नहीं पूछी, ये मेरा फैसला है। अब तुम्हें वहां जाना है। अगर अपना जरूरी सामान ले लो तो अच्छा है, वरना फिर तुम्हें ही मुश्किल पेश आएगी। मुझे यहीं रहने दो। वो इल्तिजाओं पर उतर आई, मगर अमीर अली ने जो सोच लिया था उसे हट जाना मुमकिन नहीं था। अली के मुलाजमाओं ने उसका सामान पैक किया और उसे जबरदस्ती जीप में सवार किया गया। तमाम रास्ते वो हसरत से आजाद फिजाओं को देखती रही। फिर मलिक अमीर अली का इलाका शुरू हुआ और उसके हाथ पांव बेजान होने लगे। दिल की धड़कन एतदाल पर ना रही, बड़ी बेबसी से अपने दाएं बाएं बैठी। मलिक की दो हट्टी कट्टी मुलाजमाओं की तरफ देखा और फिर आंखें मोड़ ली। इन औरतों ने सहारा देकर उसे मलिक की हवेली पर उतारा। बीबी को उसके कमरे में पहुंचा दो, जो मैंने खास तौर पर इसके लिए तैयार करवाया है। वो किसी फातेह की तरह करते हुए एक तरफ को चले गए। कमरा देखकर वो ठटकी। ये तो किसी दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारी लगती थी। घबरा कर मलिक की मुलाजमा की तरफ देखा। वो मुस्कुराने लगी। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर तुम हमारी छोटी बीबी बन जाओगी। वैसे ये बात अभी किसी के इल्म में नहीं। मैं तो मलिक जी की खास मुलाजमा हूँ। जो बात किसी से नहीं कहते, मुझसे कह देते हैं। तुम भी मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। अब बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना और गर्म दूध लेकर आती हूँ। दूध पीकर तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी। दूध? तो अभी मलिक को मेरी होशमंदी से खतरा बाकी है। हार तो चुकी हूँ, अब क्या रह गया है मेरे पास? मगर शायद अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अकेली औरत, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, इस मुआशरे में किस कदर बेबस है। आ गई तुम? धार से दरवाजा खोलकर रजवाना कमरे में दाखिल हुई और नफरत से भरपूर नजर उस पर डालकर कहा, मैं खुद नहीं आई, तुम्हारा बाप जबरदस्ती लाया है। मेरे बाप पर तो जादू कर दिया है, दिन रात तेरे ही नाम की माला जपता है। अरे मैं पूछती हूँ, तुझे अपनी उम्र का कोई ना मिला था जो मेरी माँ का घर बर्बाद करने चली आई है? ऐसी कौन सी खूबी है तुम्हारे बदकिरदार बाप में जो मैं उस पर जादू चलाऊंगी? मुझे नफरत है इस मक्कार शख्स से जो मेरी बेबसी से फायदा उठाने पर तुला हुआ है। हाँ, वो बदकिरदार है और तुम कुछ भी नहीं। रिजवाना की नफरत कम नहीं हो रही थी। असमत के जहन ने बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। रिजवाना उसकी निजात दहिंदा हो सकती है। रिजवाना ने उसकी खामोशी को उसकी शिकस्त जाना और बोली, तुम क्या हमें बेवकूफ पागल समझती हो? चार जमातें पढ़कर सारी अकल तुम्हारी ही मुट्ठी में आ गई है। ऐसा नहीं बीबी, हम भी अकल समझ रखते हैं। जो खेल तुम खेल रहे हो सब पता है हमें। हमारे ये बाप का ख्याल है, सारे मुलाजिम उसके वफादार राजदार हैं। ये बात वो नहीं जानता, कुछ लोग हमारे लिए भी काम करते हैं। रिजवाना, इधर आओ और ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। यकीन करो, मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। मेरी मदद करो और मुझे अपने जालिम बाप के चुंगल से रिहाई दिलाओ। मैं तमाम उम्र तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। रिजवाना कुछ उलझन के साथ उसकी सूरत देखने लगी। तुम्हारे बाप ने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। उसने मुझे मेरी हवेली में भी कैद कर रखा था और अब यहाँ ले आया है। रिजवाना के कुछ कहने से पहले वो मुलाजमा खास, जिसका नाम बख्तो था, चली आई। खाने की ट्रे उठा रखी थी जिसमें दूध का गिलास भी मौजूद था। रिजवाना को यहाँ देखकर वो ठटकी। रिजवाना मुस्कुराने लगी। आओ बख्तो, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो। मैं तुम्हें याद ही कर रही थी। कोई काम है मुझसे? उसके अंदाज में अजीब सी बेनियाजी और रखाई थी। मखमल का सूट लाई है मेरी खाला, तुमसे मोती लगवाऊंगी। हाँ ठीक है। वो अब भी इसी अंदाज में?
गोया हुई। अच्छा हुआ असमत तुम यहाँ आ गई, मैं तुमसे ही मिलना चाह रही थी। तुम्हारे अब्बा का अफसोस करना था, मगर अब्बा मसरूफ ही बहुत रहते हैं, मुझे तुम्हारे पास ला ही नहीं सके। रिजवाना ने वक्तों के सामने अपना अंदाज यकसर बदल लिया था। अल्लाह की यही मर्जी थी, असमत भी धीरे से बोली। बहरहाल असमत बहन, तुम फिक्र मत करो, इस घर को अपना घर समझो, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगर मुझे इल्म होता रजवाना यहाँ मुझे इतने हमदर्द मिल जाएंगे तो मैं पहले चली आती। दोनों वक्तों के सामने मसलहत से काम ले रही थी। रिजवाना बीबी, इसकी खिदमत के लिए मैं मौजूद हूँ, तुम अपनी माँ के पास जाओ, इसका ख्याल रखो, बहुत बीमार है बेचारी। और सुनो, माजून बाकायदगी से खिलाती रहना। क्या ये मलिक अपनी बीवी को भी माजून दे रहा है? इसे भी कत्ल कर देगा? असमत का माथा ठनका, मगर तासुरात को छुपाने वो खाना निकालने लगी। मुलाजमा वापस चली गई और रिजवाना भी वापस चली गई। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर तुम हमारी छोटी बेगम बन जाओगी। ये आवाज कमरे में चकराने लगी और उसका जी चाहा हर चीज तहस नहस कर डाले, कमरे की आरइश बिगाड़ कर रख दे, मगर अकल इसके खिलाफ फैसला देती थी। रिजवाना की सूरत में उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो बहुत मदद कर सकती थी। उसने थोड़ा सा खाना खाया, दूध का गिलास वॉश बेसन में बहाने के बाद बिस्तर पर आ बैठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब कौन आ गया? उसने नागवारी से दरवाजे की जानिब देखा, उठकर आई, चटकनी गिराते गिराते हाथ रुक गए। कौन है? उसने मोहतात अंदाज अपनाया। दरवाजा खोलो शहजादी। आप? और इस वक्त? तलखी रोम रोम से टपकने लगी। जरूरी बात करनी है, जल्दी खोलो। सुबह कर लेना, मैं सोने लगी हूँ। मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, दरवाजा खोलो। सुबह आना। वो इतना कहकर दरवाजे से हट गई। असमत! उन्होंने तब कर जोरदार दस्तक दी और गुस्से में उसके असल नाम से पुकारा। वो टस से मस नहीं हुई, अलबत्ता दिल पूरी तरह धड़क रहा था। मलिक कुछ देर इंतजार के बाद मायूस होकर लौट गए। असमत सारी रात सो नहीं सकी, घबरा घबरा कर बंद खिड़कियों दरवाजों को चेक करती रही। उस तवील रात का इख्तिताम हुआ तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह की आमद थी। उसने सोचा, मलिक अभी सो रहे होंगे, मुझे इसी वक्त रोजाना से मिलना चाहिए। दरवाजा खोलकर वो बाहर आई, फिर कदम रोक लिए। मलिक ने उसे अपना घर चंद माह पहले दिखाया तो था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। रिजवाना का कमरा किस साइड पर था? वो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर अंदाजे से एक तरफ चल दी। इस वक्त यहाँ हू का आलम था, हर सू गहरी खामोशी और खौफ छाया हुआ था। तुम इस वक्त यहाँ? अचानक सामने के कमरे का दरवाजा खोलकर रिजवाना बाहर निकली। उसके हाथ में शीशे का गिलास था, शायद वो पानी लेने निकली थी। सुनो, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है माजून की सूरत में मलिक तुम्हारी माँ को जहर दे रहा है। तुम अपनी माँ को ये माजून मत खिलाओ, उसे बचा लो। मगर तुम ये कैसे कह सकती हो? वो परेशान होकर असमत की तरफ देखने लगी। ऐसा ही माजून उसे मेरे बाप को खिलाकर कत्ल किया है, और मुझे भी दूध में कोई दवा पिलाकर जहन मफलूज कर देता है। मेरे अब्बा की जायदाद के कागजात, रुपया पैसा सब मलिक के कब्जे में है। रिजवाना ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, हम दोनों मिलकर भी कुछ ना कर सकेंगे। बस मैं आज ही पैगाम भेजकर अपने मामू को यहाँ बुलाती हूँ और सारी बात उनके सामने रखती हूँ। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम फिक्र न करो, मुझे अब अपना हमदर्द समझो। असमत मुतमईन होकर अपने कमरे में चली आई और दरवाजा लॉक कर लिया। दोपहर तक रिजवाना के दो मामू आ गए। रिजवाना ने उन्हें सारी बात बता दी और बेहतर तदबीर के लिए कहा, हम अपनी बहन को लेने आए हैं। मलिक, अमीर अली दोनों बात सुनने के बाद उसके पास पहुंचे थे। तुम जानते हो वो बीमार है, यहाँ उसका इलाज हो रहा है। खूब, जहर खिलाकर तुम उसका इलाज करवा रहे हो ताकि फिर जवान लड़की से दूसरा ब्याह रचा सको। वो गांव के लड़ने मरने वाले देहाती लोग थे जो अकल से कम जज्बात से ज्यादा काम लेते हैं। तुमसे ये झूठ किसने बोला? मलिक का माथा ठनका। उसने ये सच हमारे सामने कहा है, जिसके बाप को तुमने यही माजून खिलाकर कत्ल किया और जिसे दूध में मिलाकर कुछ पिला देते हो और जायदाद पर काबिज हो। मलिक, हम बड़े अरसे से तुम्हें देख रहे हैं, लिहाज इसलिए करते रहे कि तुम आखिर हमारी बहन के सर के साईं हो। मगर अब जबकि तुम्हारी बहन मगर अब जबकि तुम हमारी बहन ही का खून करना चाह रहे हो, हम कोई रियायत नहीं बरतेंगे। तुम दोनों बैठ जाओ और आराम से मेरी बात सुनो। बस, अब कुछ नहीं सुनना। हम अपनी बहन को लेने आए हैं, लेकर ही जाएंगे। देखो, यहाँ उसे अच्छी खुराक, अच्छी दवा मिल रही है, देखभाल को कई एक मुलाजिम है। तुम्हारे घर में इतना कुछ मुयस्सर नहीं आ सकेगा। बस मलिक, ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं। रोकने की कोशिश करोगे तो यहाँ खून बहेगा। नहीं, मैं क्यों रोकूंगा? आखिर वो बहन है तुम्हारी। मलिक अपने अक्खड़ सालों को बाखूबी जानता था। उनसे छुटकारे का भी फैसला कर लिया था, मगर फिलहाल ये मौका उन पर जाल फेंकने का नहीं था। उनके जाने के बाद रिजवाना को बुला भेजा। वो आई तो बोले,
तुम जानती हो तुम्हारे मामू तुम्हारी अम्मा को साथ ले जाने को कह रहे हैं। हाँ पता है मुझे। वो चेहरे का रुख बाप की तरफ से मोड़े बेगानगी का अंदाज लिए खड़ी थी। तुम मना करो उन्हें, यहाँ हम इलाज करवा रहे हैं। कौन सा इलाज? एक माजून खिलाकर बड़ा एहसान किया जा रहा है मेरी माँ पर। जो हकीम ने तजवीज किया वही दिया जाएगा ना। ये आपका हकीम सबके लिए एक ही दवा क्यों तजवीज करता है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप अच्छी तरह समझ गए हैं। यही माजून खाकर चाचा फैज कब्र में उतर गए हैं। नहीं, उसको तो कोई माजून नहीं दिया गया। ये झूठ किसने बोला? मुझे असमत ने खुद बताया है। ठीक है, अब तुम जाओ। उनका मकसद पूरा हो गया था। वो जान गए थे असमत ने अपने बाप के कत्ल वाली बात सबसे कह दी है, लेकिन फिक्रमंद नहीं थे। रात से पहले पहले मलिक की बीवी अपने भाइयों के साथ चली गई। रिजवाना मुतमईन थी, उसकी माँ महफूज हाथों में थी। असमत को मुलाजमा खाना देने आई थी। पूछने पर उसने बताया था मलिक घर पर ही हैं। तब से उसे धड़का सा था। आज मलिक सारा दिन उसके कमरे की तरफ नहीं आए और ना ही उसके लिए दूध का गिलास आया था। रात उसने आंखों में काट दी। सुबह मुलाजमा ने दस्तक दी और साथ ही कहा, बीबी दरवाजा खोलो और नाश्ता ले लो। इतनी जल्दी नाश्ता? कुछ हैरत के साथ उसने टाइम देखा और दरवाजा खोल दिया। मुलाजमा के साथ अमीर अली को खड़े पाकर उल्टे कदमों पीछे हटी। मुलाजमा यहीं से वापस हो गई। मलिक अंदर चले आए। तो मैं एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ असमत बेगम। उनके चेहरे पे सफाक मुस्कुराहट थी। वो खामोश खड़ी रही। आज निकाह कर रहा हूँ तुमसे। नहीं, ये नामुमकिन है। बेबसी के शदीद एहसास में दबी वो कराही थी। बस थोड़ी देर तक मौलवी आने वाला है, तब तक मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में ही बैठूंगा। मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। वो रोने लगी। मैं बदजोक नहीं हूँ, औरत का हुस्न बखूबी जानता हूँ। तुम इस म्यार पर पूरी उतरती हो। तुम्हें अपनी बीवी बनाना है, ये फैसला मैंने बहुत पहले कर लिया था। खुदा के लिए, खुदा के लिए। वो कांप रही थी। बस थोड़ी देर की बात है, निकाह हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये खौफ आरती है। मौलवी साहब ने आने में देर नहीं लगाई। असमत ने किसी कीमत पर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तब जबरदस्ती उसका अंगूठा कागजात पर लगा दिया गया। वो रोती दुहाई देती रही, मगर यहाँ उसके फरियाद सुनने वाला भला कौन था? निकाह के बाद मुलाजमा ने मिठाई और नाश्ता उसके सामने रखा। ले जाओ ये सब, मुझे नहीं खाना। उसने ट्रे उलट देना चाही। इसी वक्त मलिक कमरे में दाखिल हुए और उसका जिस्म पत्थर का हो गया। कुछ खाना चाहो तो खा लो और मुझे चाय बना कर दो। वो तहक्कुम रऊनत से कहते हुए सामने सोफे पर जा बैठे। असमत ने उसके हुक्म की तामील नहीं की। बहरी हो क्या? सुनाई कम देता है। मैं बीवी के नाज नखरे बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। भला क्या हैसियत होती है निकाह में आई औरत की? हमारा खाने वाली, हमारा दिया पहनने वाली, और फिर भी नखरा करती है। ऐसी औरत की एक ही सजा है, मार मार कर खाल उधेड़ दी जाए। मालिक ने बाजू से पकड़कर यूं खींचा कि वो उसके पहलू में आ गिरी। बस, ये औकात है तेरी। भूल जा अपनी तालीम को और दोबारा जिद मत दिखाना। मैंने इस शादी को कबूल नहीं किया। हाँ अच्छा, मालिक ने कह कहा लगाया। चलो कोई बात नहीं, फिर निकाह निकाह के बगैर ही सही। रहम करो जालिम, ये सोचो तुम भी बेटी वाले हो। अगर तुम मर जाओ और तुम्हारी बेटी के साथ कोई ये सलूक करे। वो सिसकने लगी। मैं तुम्हारे बाप की तरह अहमक गधा नहीं हूँ जो जवान लड़की को पढ़ाई के बहाने घर बिठा कर रखूं। रिजवाना का रिश्ता तय है, 3-4 महीने में रुखसती हो जाएगी। कौन कह सकता है कि तुम 2-4 महीने जिंदा रहोगे? बको मत, मैंने कहा है अपनी औकात में रहना। अब तुम बीवी हो मेरी, और मेरे नजदीक बीवी का मतलब है पैर की जूती, हकीर शय। मलिक, मलिक, साईं जी, अभी अभी इतला आई है। बड़ी बीबी फोत हो गई हैं। 2-3 मुलाजमाएं रोती हुई चली आई थी। मर गई? अच्छा, किसने बताया है? मलिक उठ खड़े हुए। रिजवाना बीबी बहुत रो रही हैं जी। अच्छा, कहाँ है रिजवाना? वो उजलत में कमरे से निकले और फिर रिजवाना को साथ लेकर मरहुमा बीवी के मेके चले गए। जाते जाते कह गए, रात से पहले वापिस आऊंगा। नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर मेरे इस्तकबाल को तैयार रहना। बहुत से जोड़े अलमारी में रख छोड़े हैं मैंने। खुदा करे तुम कभी वापिस ना आओ, बंद होंठों के साथ उसने कहा था। उनके जाने के बाद दरवाजा लॉक किया और बिस्तर पर आ गिरी। मुलाजमा खाना लेकर आई, तब भी उसने दरवाजा नहीं खोला। जूं जूं वक्त बीत रहा था, उसका दिल उसकी आमद के ख्याल से बैठा जाता था। तो ये है तुम्हारा नसीब असमत बानो। आंसू एक तवातर से बह रहे थे। दोपहर से शाम हुई, शाम में रात ढली। हर आहट पर रूह जिस्म का साथ छोड़ने लगती। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था। 10 बजने को आए। गांव में रात के 10 बजे आधी रात ही हुआ करती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उछल कर बैठ गई और खौफजदा नजरों से दरवाजे को देखने लगी।
बीबी जल्दी दरवाजा खोलो, मुलाजिमा पुकारने लगी मगर वो नहीं उठी। सुबह भी तो ऐसे ही धोखे से दरवाजा खुलवाकर मलिक कमरे में चले आए थे। बीबी जल्दी करो, खबर अच्छी नहीं है, हमारे मलिक साईं को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो मुलाजिमा यकीनन रो भी रही थी। असमत जल्दी से उठी और दरवाजा खोल दिया। क्या तुम सच कह रही हो? खुशी से उसकी आवाज कांप रही थी। छोटी बेगम, साईं को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो चारों इकट्ठी गोया हुई थी। अच्छा, किस जुर्म में? वो दिल की खुशी छुपाए संजीदगी से पूछने लगी। कहते हैं बड़ी बेगम को हमारे मलिक ने जहर देकर मरवाया है। इसके भाई गुलाम कादिर ने शहर से डॉक्टर बुलवाया था। पता नहीं पुलिस को कैसे अपने साथ मिला लिया। आप तो पढ़ी लिखी हो, औरत हो, मगर पढ़ाई की वजह से सब कुछ कर सकती हो। भला मैं क्या करूं? वो शाने उचकाकर बेनियादी से गोया हुई। मुंशी कह रहा है पैसे दो, थाने जाकर कोशिश करता हूँ। एक धेला भी नहीं है मेरे पास। वो बेहद मुतमईन थी। मलिक जी की अलमारी में रखे हैं, चाबियां उनके बिस्तर के पास छोटी मेज की दराज में होंगी। तो सोचकर वो मलिक के कमरे में आई, चाबियां निकालकर सैफ खोली और जायजा लिया। यहाँ उसके मतलूबा कागजात भी मौजूद थे। वो अलग करके अपने पास रख लिए, फिर उनसे बोली, रात बहुत हो गई है, सुबह मैं खुद थाने जाऊंगी। मगर साईं वहां पर रात कैसे काटेंगे? वापिस आकर बहुत नाराज होंगे। जाओ और जाकर मेरे लिए खाना लाओ, मैं बेहतर समझती हूँ मुझे क्या करना है। आपके सर का साईं थाने में बंद है, आप रोटी खाओगी? सुबह से भूखी हूँ, भूख लग रही है मुझे। वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। सुबह मुलाजिम औरतों के साथ साथ मुंशी भी उसके दरवाजे पर खड़ा था। मैं थाने गया था बीबी, मगर वहां किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया। बड़ा अफसर आया हुआ है, कोई जवान सा मर्द है, हमारी बात नहीं सुनता। आप पढ़ी लिखी हो, किसी वकील से बात करो। मलिक साईं बड़े गुस्से में होंगे। मैं खुद थाने जा रही हूँ, नाश्ता कर लूं, तुम गाड़ी तैयार रखो। 10 बजे तक उन सबको खूब इंतजार करवा कर वो स्याह चादर ओढ़कर साथ हो ली। थाने की इमारत मखसूस सरकारी इमारतों जैसी ही थी, मगर उसे कितनी अपनी अपनी सी लग रही थी। जी चाहा अमले के हर छोटे बड़े रुकन का शुक्रिया अदा करे। मलिक साहब के घर से लोग आए हैं। हवालदार ने बड़े अदब से मलिक साहब कहा तो असमत के दिल में अपने लिए नफरत बिठा गया। अंदर बुला लो। ऑफिसर की आवाज उसने बरामदे में खड़े सुनी और चिक उठाकर अंदर चली आई। वो जो सामने बैठा था उसे देखकर कदम जम से गए। वो भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम, आप इन लोगों के साथ मलिक अमीर के लिए आई हैं? ये हमारी छोटी बेगम है, निकाह किया है साईं ने इनके साथ। मुंशी ने बड़े फखर से इतला दी और शेख कौर ने निचला दब दांतों तले दबाकर जख्मी नजरों से असमत की तरफ देखा। तुम लोग बाहर बैठो। असमत ने मुंशी और दूसरे लोगों को बाहर भेज दिया। कहाँ रहे इतने रोज, ये खबर भी ना ली असमत जीती है या मर गई। शादी तुमने कर ली, गिला मुझसे कर रही हो, ये भी खूब रही। उसकी हंसी बिखरी बिखरी सी थी। तुम्हें पता है क्या बीती मुझ पर? शेर को मैं तो मर मर कर दिन गुजार रही हूँ। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया असमत? मेरी कहानी तो सुन लो, फिर जो मेरा कसूर हो सजा भी दे लेना। वो कुर्सी पर बैठी गहरे गहरे सांस ले रही थी, जबकि शेर को चेहरे पर दुख की गहरी तहरीर लिए उसे देख रहा था। असमत अपनी कहानी सुनाने लगी। वो बज़ाहिर मुतवज्जा था, हाथों का इस्तराब बताता था, सोच बार बार भटक जाती है। शायद ये एहसास कि ये लड़की जो मेरे सामने बैठी है कश्तियां डुबो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तफसील से वो सब बताकर जैसे तवील मुसाफत के बाद थक गई थी। तुमसे धोखा हुआ, ज्यादती हुई, फिर भी तुम उसके लिए थाने चली आई हो, सिर्फ इसलिए ना कि वो अब तुम्हारा शोहर है। तुम में और गांव की अनपढ़ लड़की में फर्क ही क्या रह गया? किसने कहा मैं उसकी सिफारिश लेकर आई हूँ? या मलिक से मिलकर तसल्ली देना चाहती हूँ? ऐसा नहीं है। तुम मुझे यहाँ मिलते या ना मिलते, मैं तो जुल्म के खिलाफ अकेली ही जंग के इरादे से निकली हूँ। मैं उसके खिलाफ अपने बाप के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ। शाबाश, शेर को ने बेसाख्ता कहा। फिर किसी को आवाज देकर मुहर्रर को बुलाने के लिए कहा और असमत से बोला, ये इत्तफाक है कि मैं अभी तक यहाँ मौजूद हूँ। मैं तो अपने अंडर थानों का राउंड लेने निकला था। इस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं इसको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके खिलाफ मेरे पास बहुत से इल्जामात मौजूद हैं। इसकी सारी ताकत खुद उसी तक है। पीछे कोई रिश्तेदार नहीं है जो इसके लिए लड़ाई करे। इसे बंद कर दिया, समझो सब कुछ कैद कर दिया। असमत पुरसुकून थी। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? शेर को की शराबी कैफियत खत्म हो चुकी थी। नहीं, मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। मुझे धमकी देने वाला, पैर की जूती समझने वाला इस वक्त कितना बेबस है। आओ मेरे साथ। शेर को ने इशारा किया। कुछ ही देर बाद वो हवालात के सामने थी। मलिक इस वक्त मैले से हुलिये में थके थके अंदाज में बोरी पे बैठा कितना बूढ़ा दिखाई देता था। हवालात में कटने वाली एक ही रात ने उसे क्या बना दिया था।
आहट पे सर उठाकर ऊपर देखा। तुम आ गई? जमानत का बंदोबस्त किया है? नहीं, असमत ने बड़े सर्द अंदाज में जवाब दिया। क्यों? क्यों नहीं किया अभी तक? तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ किस कदर तकलीफ में हूँ? सारी रात सो नहीं सका। खाना तो लाई हो ना? मैं कौन हूँ? मुझे पहचानते हो? हाँ, क्यों नहीं? तुम असमत हो, मेरी बीवी। नहीं, पैर की जूती, बेहैसियत, हकीर शय, जिसे तुम चाहो तो रोन डालो। वो उसके तेवर देखकर ठटका, फिर तवक्कुफ से बोला, नाराज हो? वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। बस अब गुस्सा थूक दो और मेरे लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो कुछ करो। कुछ फोन नंबर लो और यहाँ फोन करो। मैं फैज बख्श की बेटी हूँ, उसी फैज बख्श की जिसे तुमने कत्ल किया है और मुझसे जबरदस्ती निकाह किया है, मेरी जायदाद पर कब्जा किया है। मैं तो तुम पर केस बनवाने आई हूँ अमीर अली साहब। वो चबा चबा कर गोया हुई। जो भी सही, तुम मेरी बीवी हो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। और फिर मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया। लोग मुझसे जलते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं, तो मुझे यहाँ से निकलवाओ। कसम खाकर कहता हूँ, रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। बस ये औकात है तुम्हारी? तुम्हारे खौफ के दुम हिलाने लगे। तुम जैसे खोखले इंसान ऐसे ही कागज के शेर होते हैं। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करके मुझे तैश मत दिलाओ। शहजादी, अमीर अली ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा सबको हदायत दे, वो इतना कहकर वापस आ गई। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? शेर को फ्रेश था, उसने इस बात में सर हिला दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। तुम्हें क्या हो रहा है असमत, ठीक तो हो? उसकी हालत देखकर वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। कुछ नहीं, मैंने कड़ी मुसाफत तय की है, वो भी नंगे पांव। अब साया दिखाई दिया है, सस्ताने बैठ गई हूँ। अगर साये से मुराद मैं हूँ तो मुतमईन रहो, ये साया हमेशा साथ रहने का वादा करता है। वो मुस्कुराया था। असमत हंस पड़ी और बोली, जी नहीं, मेरी मुराद आप नहीं है। मैं तो इन सारे झमेलों से आजाद होने की बात कर रही थी। वैसे मेरे बारे में ख्यालात तब्दील तो नहीं हुए, मैं अब भी ज़ेरे गौर हूं ना। सुनिए, मैंने अमीर अली से निकाह पर इनकार किया है, मगर जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगा दिया गया है। उस शख्स से खुलासी पाना अब कोई मसला नहीं, तुम इस बात को जहन पर सवार मत करो। बहुत मकार है ये शख्स, इस सिलसिले में तंग कर सकता है। इस वक्त वो पुलिस की तहवील में है, और यूं थाने आकर एक दो रोज भी गुजारने पड़ जाएं तो अच्छा भला काया शख्स भी उल्लू का पट्टा बन जाता है। हमारी किस्मत में यूं ही लिखा था। मुझे आलिया के इलाज के लिए कराची जाना पड़ा, और मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा टाइम लग गया। अब कैसी है आलिया? क्या कहते हैं डॉक्टर? बस उम्मीद पर दुनिया कायम है। तुम अब फिलहाल अपने घर जाओ, मैं वहीं से तुम्हें अपने घर ले जाने को आऊंगा। अपने घर? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा कमरा, मेरी किताबें, मेरे लोग और आजादी का एहसास, किस कदर खूबसूरत है ये सब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्र मेरा नहीं, अल्लाह ताला का अदा करो। उसने तुम्हें एक बार फिर अच्छी जिंदगी बख्श दी है। तमाम रानाइयां, तमाम लताफतें तुम्हारे लिए हैं। हाँ, वो अजीम है, रहमान है और रहीम है। वो आंसू पोंछने लगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस वक्त वो बावर्दी शेरको के हमरा अपनी हवेली पहुंची, मलिक के आदमी पहरे पे थे। पुलिस ऑफिसर को देखकर उसकी मजाल थी जो कोई रास्ता रोकता। बड़ी शान से वो हवेली वापस आई थी। गांव के बच्चों की जुबानी उसकी वापसी की इतला घर घर पहुंच चुकी थी, और वो सभी उसके रास्ते की तरफ भागे चले आ रहे थे। बीबी, तुम आ गई। बीबी जी, सलाम। बीबी, अब तुम यहीं रहोगी ना? कितनी आवाजें थीं, कितनी मोहब्बतें, किस कदर अपनाइयत थी। फिजा अपनी, जमीन अपनी, लोग अपने। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनसे मिल रही थी और उनके सवालों के जवाब दे रही थी। ये कौन है बीबी जी? सवाल अचानक हुआ था। तुम बताओगी या मैं अपना तारुफ खुद करवा दूं? शेर को ने इत्तफाक करते हुए इस बात में सर हिलाया और बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हिफाजत के लिए तमाम उम्र साथ रहेंगे। बीबी ने इस सिलसिले में मुझसे मुआहिदा कर लिया है, सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? ना जी, हम क्यों एतराज करेंगे? बीबी ने सोच कर ही फैसला किया होगा, अकल वाली हैं। रखी ने शौकी से दोनों को देखते हुए कहा था। अकल का पता नहीं, दिल वाली जरूर है। शेर को ने असमत की तरफ देखकर कहा तो वो घूर कर रह गई। यहाँ पर तो किसी को भी एतराज नहीं, तुम्हारी तरह। तुम्हारी पर जोर दिया। शेर को, वो तंबी के अंदाज में धीरे से बोली। शेर को हंस पड़ा, साथ ही औरतें और बच्चे भी हंसने लगे, और उनकी ख्वाम खा की हंसी पर असमत भी मुस्कुरा दी। आसूदगी चेहरे पर थी और दिल इत्मीनान से धड़क रहा था। सरमा की नरम चमकीली धूप हर सू फैली थी
اور उसकी रूह पहली रोशनी में हर चीज चमक रही थी, जैसे जैसे असमत के हाथ पर बनी किस्मत की लकीर। तो यहीं पे एंड होता है हमारी इस खूबसूरत सी कहानी का। और उम्मीद है आपको ये नॉवल अच्छा लगेगा। समरा बुखारी तो वैसे ही मतलब उनका नाम ही काफ़ी है, एक स्टोरी को पढ़ने के लिए, एक स्टोरी को सुनने के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। तो मुझे पूरा यकीन है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये नॉवल सुन के, अच्छा लगा होगा, सुन लिया होगा अब तो खैर से। और बाकी इंशाल्लाह जल्द आ जाऊंगी एक बहुत अच्छे से नॉवल के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। और क्या करेंगे आप, और अच्छे अच्छे काम करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।